تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ والی تکلیف پہنچائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات، سچی بات کیا کرو، تاکہ تم اللہ تمہارے کام کو سنوار دے، تمہاری گناہ معاف فرما دے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور سب اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت، یعنی کہ یہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مطلب اس طرح سے امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام اور یہ جو وعدہ ہے، کلمہ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر چلنے کی بات ہے، تو وہ سب کے سب اس چیز پہ ڈر گئے، کیونکہ ان کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کا ثواب اور باقی چیزیں بھی نظر آ رہی تھی، بلکہ اگر کوئی کام ہو جائے تو ان کو وہ چیزیں بھی پتہ چل رہی تھیں، تو وہ اس تمام صورتحال سے ڈر کے انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں پہ جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان نے جو ہے اس کو اٹھا لیا، اور اب یہ ادائیگی جو ہے اس بات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ چونکہ انسان نے اس کو اٹھا لیا ہے، آدم علیہ السلام نے اس کو مان لیا تھا، تو لہٰذا اب یہ بات کو پورا کرنا بنتا ہے کہ یہ چیز جو امانت جو سی ہے اس کو اب ادا کیا جانا چاہیے۔ تو آیت میں بھی آگے اسی طرح سے ہے کہ مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے، یعنی انسان کے پاس اس وقت علم نہیں تھا اور ظلم اس نے اپنی جان پہ کر لیا۔ یہ اس لیے کہ اللہ منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بات یہاں پہ بیان کی کہ اب یہ چیز چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو جو ہے، یعنی کہ یہ جو زندگی اس طرح سے گزارنے کا ہے طریقہ، اس کو دین کو جو ہے اب چونکہ اپنا لیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا تھا آدم علیہ السلام کو، جو چیز نصیحت فرما دی گئی تھی، اب یہ چیز واپس نہیں ہو سکتی، واپس اس دور میں جایا نہیں جا سکتا جس وقت اللہ تعالیٰ یہ امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں پہ جو پیش کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اب زندگی آگے کی طرف ہی جائے گی، اور یہ معاملہ جو ہے اب جہاں پہ ہم جس دور میں پیدا ہوئے، ہم ان آیات کو آج پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے زندگی کو گزار کے جو ہمیں ہدایت بتا دی گئی ہے اور گائیڈنس دے دی گئی ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے، تو اس کو کر کے نکلنا ہے۔ ہم اب یہ باتیں سن کر کے یہ باتیں کہیں کہ کاش کہ وہ نہ ہوا ہوتا یا ایسا نہ ہوا ہوتا، تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کر دی ہیں کہ اس سے پتہ چل جائے کہ جو منافقین اور مشرک اور اس طرح کے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ان کے سمجھانے کے لیے بھی بیان کی ہے، اور اسی مثال کے چونکہ بیان کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے اگر اس پہ ایمان نہیں لائیں گے تو کل کو یہی ان کے خلاف حجت قائم ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ جو ہماری صورت ہے الاحزاب وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور آگے سورہ سبا جو سی ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، اس کے 6 رکوع ہیں اور اس کے اندر 54 آیات ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، بڑی حکمتوں والے اور پورے باخبردار ہیں۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں سب کچھ وہ جانتے ہیں، جو زمین میں جائے گا، جو اس سے نکلے گا، جو آسمان سے اترے، جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہیں، وہ مہربان نہایت بخشش والے ہیں۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب میں ہے کہ وہ یقیناً تم پہ آئے گی۔ اللہ اسے ایک ذرے کے برابر بھی چیز بھی پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ سے تو ایک ذرہ کے برابر بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، تاکہ وہ ایمان والوں نیکوکاروں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اللہم نجعلنا منہم۔ اور ہماری آیتوں کو آمین ثم آمین، اور ہماری آیتوں کو نیچے دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت دردناک عذاب کی سزا ہے۔ جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب اور آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے سراسر حق ہے، اللہ غالب خوبیوں والوں کی راہبری کرتا ہے۔ اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اسی نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا کہ اسی دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ کیا بس وہ اپنے پیچھے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھ رہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں اور یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو لوگ آخر پہ یقین نہیں رکھتے ان کی لیے عذاب کی بات کرنے کے بعد دوبارہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے بات شروع کی ہے، اور اس میں اپنے فضل کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کا فضل تھا کہ ان کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ پرندوں کو بھی اللہ کا حکم تھا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا فضل تھا وہ یہ کیا کہ ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، یعنی لوہے کی دھات ان کے دور میں پہلے سے موجود تھی، لیکن وہ جو لوہے سے چیزیں بناتے تھے، اور اس طرح سے ان کے لیے وہ آسانی اللہ نے اس کام میں کر دی تھی کہ وہ لوہے کو تھوڑی سے کوٹے بغیر موم اور گوندے ہوئے آٹے اور گیلی مٹی کی طرح جس طرح چاہے موڑ لیتے، بٹ لیتے، جو چاہے بنا لیتے تھے، تو وہ ان کو یہ سارے کام نہیں کرنے پڑتے تھے، بس وہ لوہے کو پکڑ کے اس کو جو ہے کسی بھی شیپ پہ ڈھال دیتے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا ان کا، اتنی سخت دھات کو ان کے ہاتھ میں نرم ہو جانا۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کوئی جادو ٹونے سے نہیں کر رہے تھے، یہ وہ ان کا فضل تھا اللہ تعالیٰ کا، اور یہ معجزہ ہے جیسے تمام نبیوں پہ طرح طرح کے فضل اور معجزے ہوتے ہیں۔ تو کہ تو پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ اور تم سب نیک کام کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا فرمایا تھا، ٹیلنٹ جو دیا تھا، اس سے وہ نیکی کے کام لینے کے لیے ان سے بات کی گئی تھی۔ یقیناً میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا تھا کہ ان کے اعمال کو اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ تو یہ جو منزل جو ہوا کی بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت اور جتنے بھی جو ان کے لوگ ہوتے تھے دربار کے، ان کے ساتھ تخت پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کا لشکر، تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ ہوا کے ذریعے سفر کرتے ہوئے، یعنی کہ پوری فوج کو بھی سفر کراتے ہوئے وہ لے جاتے تھے، اور ان کی جو سفر وہ ایک وقت میں کر لیتے تھے،
यानी कि जिसकी महीने भर की मसाफ़त उस ज़माने में होती होगी, महीना लगता होगा किसी जगह पे पहुँचने में, तो वो सुबह से लेके दोपहर तक वो जो है वो यानी कि इतने छोटे वक़्फ़े में वो एक मंज़िल कर लेते थे। जैसे आज हम हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो और हवा के ज़रिए ही करते हैं, तो बहुत बड़ा अरसा जो-सा है वो कम वक़्त में घंटों में तय हो जाता है। तो ये वो बातें यहाँ पे बयान की हुई हैं कि वो हवा को कंट्रोल उनको कर दिया गया था और उनके यहाँ पे सफ़र करने का अपना ही तरीका था। और फिर जो है कि हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया, तो तांबा जो-सा था वो धाती जैसे लोहा दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए नरम किया गया था, इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे का चश्मा जो-सा है, यानी कि उनको ये तांबे का जो धात है, उसका उनको उनके लिए आसानी कर दी गई थी। तो उससे फिर वो तरह-तरह की चीज़ें बनाते थे और इसके अंदर जितनी इंडस्ट्री उन्होंने बनाई है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी चीज़ें इजाद की हैं, तो वो जिन्नात से यहाँ उन्होंने काम लिया है। तो ये तमाम काम जो-सा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये उनके दौर में हुआ है। और उसके हुक्म से बाज़ जिन्नात उसकी मातहती में उसके सामने काम करते थे, उसमें से जो भी हमारे हुक्म की सरताबी करे, हम उसे भड़कती हुई आग के अज़ाब का मज़ा चखाएँगे। जो कुछ सुलेमान चाहते थे, वो जिन्नात तैयार करते थे। मसलन किले, मुजस्समे, हौज़ों के बराबर लगन और चूल्हों पर जमी हुई मज़बूत देगें। क्योंकि ये तमाम चीज़ें जिनकी अब खंडरात में पता चलता है और इंसान देख के सोचता है कि ये इंसानों का काम तो नहीं है, किसने बनाया? तो अल्लाह ताला ने बयान किया कि वो जिन्नात से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काम लिया था। ए आले दाऊद, इसके शुक्रिये में नेक अमल करो, मेरे बंदों में से शुक्रगुज़ार बंदे कम ही होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बनना है। अल्लाह ताला जो है इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि किस कदर फ़ज़ल किया है इंसानों पे, लेकिन इंसान जो है वो कम है शुक्रगुज़ार। फिर जब हमने इन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी खबर जन्नात को किसी ने ना दी, सिवाय घुन के कीड़े ने जो उनकी असा को खा रहा था। तो ये भी अल्लाह ताला का एक अमल था कि अगर वो ना चाहते तो उनकी असा को कीड़ा ना खाता। उन्होंने जिस भी हालत में सुलेमान अलैहिस्सलाम को वफ़ात हुई तो वो असा पकड़ के मतलब जन्नात को काम करता हुआ एक जगह से देख रहे थे और किसी को पता नहीं चला कि उनकी जो है वो मतलब वफ़ात हो चुकी है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने कीड़े को हुक्म दिया कि जब वो असा को उसने खाया और वो गिर पड़े, तो तब तक उस वक़्त जिन्नों ने जान लिया कि अगर जिन्नों के पास भी गैब का कोई इल्म होता, तो वो उनकी वफ़ात का वक़्त जो है वो जान लेते। इसी चीज़ को आयत में इसी तरीके से बयान किया गया है कि फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेजा तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने दी, सिवाय उनके कीड़े ने जो उनकी असा को खा रहा था। बस जब सुलेमान गिर पड़े तो उस वक़्त जिन्नों ने जान लिया कि अगर वो जिन गायब-दान होते तो इसकी ज़िल्लत के अज़ाब में मुब्तला ना रहते। कौम सबा के लिए अपनी बस्तियों में कुदरत इलाही की निशानी थी। इनके दाएँ-बाएँ 2 बाग थे। हमने इनको हुक्म दिया था कि अपने रब की दी हुई रोज़ी खाओ, उनका शुक्र अदा करो और उम्दा शहर है और बख्शने वाला रब है। लेकिन उन्होंने रूहगर्दानी की, यानी अल्लाह ताला ने जितने इनामात किए, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, उस हुक्म को छोड़ दिया, तो हमने इन पर ज़ोर के सिराब का पानी भेज दिया और हमने उनके हरे-भरे बागों के बदले 2 ऐसे बाग दिए जो बदमज़ा मेवों और बकसरत झाड़ और कुछ बेल के दरख्तों वाले थे, यानी अच्छी चीज़ रुखसत होके अब कम जो-सी है फ़ायदे वाली चीज़ मिली और जो है काँटों भरी चीज़ें उनको मिली। और ये जो कभी कुछ भी उन्होंने अमल किया था, वो अल्लाह ताला के खिलाफ जो किया था, तो उसका जो उनका नतीजा जो-सा उनको मिला। तो हमने उनकी नाशुक्री का ये बदला उन्हें दिया। हम ऐसी सख्त सज़ा बड़े-बड़े नाशुकरों को ही देते हैं। हमने उनके और उनकी बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दे रखी थी, चंद बस्तियाँ और आबाद कर रखी थी, जो बरसरे राह ज़ाहिर थी, यानी रास्ते में जो काफ़िला चल के जाता था, उसके किनारे पे थी। इनमें चलने की मंज़िलें मुकर्रर कर दी थी। इनमें रातों और दिनों को बाअमन व अमान चलते फिरते रहो। ये जिस भी बस्ती का ज़िक्र है, उनके लिए आसानी हो गई थी कि उनके लिए जो सफ़र का जो था, उनके रास्ते बना दिए गए थे और वो एक-दूसरे के पास इस तरह से उनकी बस्तियाँ फैलाई गई थी कि जब एक सफ़र का हिस्सा खत्म होता, तो वहाँ पे ठहरने की जगह थी। तो ये बड़ा आराम के लिए उनकी रखा गया था। उस ज़माने में जब इतनी सिविलाइज़ेशन की तरक्की नहीं थी, इतने लोग नहीं थे, तो इस तरह से जंगल और बियाबान में सफ़र करने में जिस तरह दिक्कत होती थी, तो उसकी जगह पे ये मुश्किलात की जगह के ऊपर जो है यहाँ पे उनको आसानी मिली कि वहाँ पे उनकी रहाइश का बंदोबस्त था। तो उन्होंने फिर भी कहा कि हमारे परवरदिगार हमारे सफ़र दूर-दराज़ कर दे। चूँकि उन्होंने खुद अपने हाथों अपना बुरा किया, तो उन्होंने ऐसी अजीब-अजीब तरह की दुआएँ माँगी कि अपने सफ़र को चाहा कि लंबा हो जाए। तो उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने अपने हाथों से बुरा किया, इसलिए हमने उन्हें गुज़िश्ता अफ़सानों की सूरत में कर दिया और इनके टुकड़े उड़ा दिए। यानी कि जिस भी तरीके से ये इस बस्ती वालों ने किया और ये जो सबा के मशहूर कबीले मुख्तलिफ जगहों पे जो आबाद हो गए थे और कोई यसरब और कोई मक्का आ गया था या शाम या कोई किसी और जगह पे चला गया। इससे पहले ये एक बस्ती बना करके उस तरह इलाके में रहते थे, लेकिन जब इन्होंने बुराई का अमल इख्तियार किया तो फिर अल्लाह ताला ने इनको टुकड़े-टुकड़े करके उड़ा दिया। मतलब ये कि टुकड़े-टुकड़े करके ये बिखर गए। तो अल्लाह ताला बिलाशुबा हर एक सब्र और शुक्र करने वालों में इसमें बहुत सी इबरतें हैं। शैतान ने इनके बारे में अपना गुमान सच्चा कर दिखाया, सो ये लोग इसके सब के सब इसके ताबेदार बन गए। यानी कि शैतान ने जो उस वक़्त असेसमेंट की थी और एक चीज़ बयान की थी कि ये लोग अल्लाह के नाशुक्रे होंगे या ये कि ये अच्छे तरीके से अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये बात तो शैतान की इन लोगों ने अपने अमाल से सच साबित कर दी है। लेकिन शैतान पर उनका कोई सिवाय मोमिनों की एक जमात के कि शैतान का उन पर कोई ज़ोर नहीं और नहीं था, मगर इसके लिए कि हम इन लोगों को जो आखिरत पर ईमान रखते हैं मालूम कर लें कि इनमें से जो इस शक में है, आपका रब हर चीज़ पर निगहबान है। आप कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन-जिनका तुम्हें गुमान है, सबको पुकार लो। ना मैं इनमें से किसी को आसमान और ज़मीनों में से एक ज़र्रे का भी इख्तियार है, ना इनका उनमें कोई हिस्सा है, ना इनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। शफ़ाअत भी इसके पास कुछ नहीं नफ़ा देती बजुज़ इनके कि जिनके लिए इजाज़त हो जाए। यहाँ तक कि जब इनके दिलों में घबराहट और दूर कर दी जाती है, तो पूछते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया? तो आप जवाब देते हैं कि हक फरमाया और बुलंद व बाला और बहुत बड़ा है। वो बुलंद और बाला और बहुत बड़ा है। पूछे कि तुम्हें आसमान और ज़मीनों से रोज़ी कौन पहुँचाता है? तो जवाब दीजिए कि अल्लाह। सुनो, हम या तो तुम्हें यकीनन हिदायत पर हैं, हम या तो यकीनन हिदायत पर हैं या फिर गुमराही में। कह दीजिए कि हमारे किए हुए गुनाह की बाबत तुमसे कोई सवाल ना किया जाएगा, ना तुम्हारे अमाल की बाज़पुरस हमसे की जाएगी। इन्हें खबर दे दीजिए कि हम सबको हमारा रब जमा करके फिर हम में सच्चे फैसले कर देगा। वो फैसले चुकाने वाला दाना है। कह दीजिए कि अच्छा मुझे भी तो उन्हें दिखा दो जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराकर उसके साथ मिला रहे हो। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि वही अल्लाह है गालिब या हिकमत वाला
गालिब और बाहिकमत, हमने आपको तमाम लोगों के लिए सिर्फ़ खुशखबरियाँ सुनाने वाला और धमका देने वाला बना के भेजा, यानी डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। हाँ, मगर ये सही है कि लोगों की अक्सरियत बेइल्म है। पूछते हैं कि वो वादा कब है, सच्चे हो तो बताओ। जवाब दीजिए कि वादे का ठीक दिन मुअय्यन है, जिससे एक साथ ना तुम पीछे हट सकते हो, ना आगे बढ़ सकते हो। काफ़िरों ने कहा, हम हरगिज़ ना तो इस कुरान को मानेंगे, ना इससे पहले की किताबों को। यानी जो कुफ़ारे मक्का थे, उनके पास जब सामने ये दीन पेश किया गया कि अल्लाह ताला की पहली किताबों को भी मानना है, तो उन्होंने इस चीज़ का इनकार कर दिया। ऐ देखने वाले, काश तू इन ज़ालिमों को उस वक़्त देखता जब ये अपने रब के सामने खड़े होकर के एक-दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होंगे और कमज़ोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम तो मोमिन होते। तो यानी इनके जो उस वक़्त जो हालात हैं ना, ख़ास तौर के ऊपर योम महशर के वक़्त जब इनके आपस में लड़ाई हो रही होगी, जब रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका होगा, अल्लाह ताला ये बात वहाँ पे बयान कर रहे हैं। ये बड़े लोग उन कमज़ोर लोगों को जवाब देंगे कि क्या हम तुम्हारे पास हिदायत आ चुकने के बाद हमने तुम्हें इससे रोका था कोई, कि बल्कि तुम तो खुद ही मुजरिम थे। इसके जवाब में ये कमज़ोर लोग उन मुतकब्बिरों से कहेंगे, नहीं, नहीं, बल्कि तुम्हारा दिन-रात मकर व फ़रेब से हमें अल्लाह के साथ कुफ़्र करने और उसके साथ शरीक करने का हुक्म देना और हमारी बेईमानी का बायस हुआ। अब दिन-रात का मकर व फ़रेब क्या है? आप क्या सोशल मीडिया के ऊपर दिन-रात का मकर व फ़रेब, मुख्तलिफ़ व्लॉग्स और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो चीज़ें मौजूद है, देख-देख के लोग हैरान नहीं होते क्या? कि जो लोग अल्लाह की हुक्म की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कैसे दौलत की बारिश हो रही है, कैसे उनकी ज़िंदगियाँ आसान है, या कैसे उन जगहों के ऊपर जो कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं, उनका क्या मामला है? तो क्या उससे बहुत सारे लोग गुमराह नहीं होते? तो देखिए, ये वहाँ पे उस तरह से वो सवाल व जवाब हो रहा होगा। तो उनका उसके शरीक मुकर्रर करने का हुक्म देना हमारी बेईमानी का बायस हुआ और आपको देखते ही इन सबके दिल पशेमान हो रहे होंगे। काफ़िरों की गर्दनों में हम तोक डाल देंगे। इन्हें सिर्फ़ इनके किए कराए का अमाल का बदला दिया जाएगा। तोक क्या होता है? तोक से मुराद ये होता है कि ऐसी चीज़ जो ज़ंजीरें जो उनकी गर्दनों में मतलब रिंग की तरह वो एक चीज़ होती है और वो उसके साथ चेन्स वगैरह लटकी हुई होती हैं, जैसे हाथ बंधे हुए होते हैं या इस तरह की चीज़। तो यानी कि वहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो हम इन्हें सिर्फ़ इनके किए कराए अमाल का बदला दिया जाएगा। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो सारी सिचुएशन बयान हो रही है, इसमें अल्लाह ताला ने किसी के साथ कोई बुराई नहीं की है। जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया था, उसका बदला उनको उस वक़्त मिलेगा। हमने तो जिस बस्ती में भी जो भी आगाह करने वाला भेजा, वहाँ के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस चीज़ के साथ तुम भेजे गए हो, हम इसके साथ कुफ़र करने वाले हैं और कहा कि हम माल-औलाद में बहुत बड़े हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम मज़ाक किए जाएँ। जितना किसी को नेमत मिली हुई होती है, जितना किसी को कोई चीज़ मिली हुई है, उतना ही वो इंसान आगे से अकड़ करके ये समझता है कि ये इतनी नेमतें तो मिली नहीं हैं और गलत रास्ते पे चलते हुए ही मिली नहीं है, तो अब कौन-सा अज़ाब आएगा कि और ये हो ही नहीं सकता कि कोई अज़ाब आए। तो ये उनकी मेंटालिटी होती है अक्सर लोगों की, लेकिन अक्सर लोग नहीं। तो ये नहीं हो सकता कि हम मज़ाक की जाए। आप कह दीजिए कि मेरा रब जिसके लिए चाहे रोज़ी कशादा कर देता है और तंग भी कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नहीं कि तुम्हें हमारे पास मर्तबों से करीब कर दें। हाँ, जो लोग ईमान लाएँ और नेक अमल करते रहें, तो उनके लिए उनके ईमान का दोहरा अजर है, वो बेखौफ होकर बहिश्त के बालाखानों में रहेंगे। तो यहाँ ये चीज़ वाज़िया हो गई कि जो किसी को दुनिया में मिला हुआ है, उसके ऊपर फैसला नहीं होगा कि आगे भी मिल जाएगा। इस बात से अगर हम अस्हाबुल कहफ वाली सूरह कौन-सी है, सूरह कहफ में बाघ वाले की बात को याद करें कि जिसने यही इसी तरह की बात की थी कि दुनिया में भी मिला हुआ है, मैं नहीं समझता कि क़यामत कायम होगी और अगर होगी भी तो मुझे मिलेगा। तो इस किस्म की जो मेंटालिटी होती है ना, अगर-मगर और उसमें दीन नहीं है, बस अपना आप है कि भई अपने आप को ये चीज़ मिल गई है, मुझे तो मिल गई है, आगे भी मिल जाएगी। तो मेरी तो ये थिंकिंग है। तो ये चीज़ नहीं होती, जो जो भी नेमत दी है, अल्लाह ने दी है। इंसान के अपने कमाल से नहीं है। तो ये शिर्क हो जाता है। तो यहाँ पे जो नेक अमाल करेंगे, नेक ईमान लाएँगे, उनका अल्लाह ताला अजर का जो बात कर रहे हैं। और जो लोग हमारी आयतों के मुकाबले की तगदो में लगे रहते हैं, यही है वो जो अज़ाब में हाज़िर किए जाएँगे। यानी जो अल्लाह ताला की आयतों के मुकाबले में बातें लेके आते हैं और मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, तंग करते हैं मुसलमानों को, तो उनके साथ क्या होगा? तो ये कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोज़ी इशादा करता है, जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह उसका पूरा-पूरा बदला देगा और सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। और जिस दिन इन सबको जमा करके फ़रिश्तों से दरियाफ़त फ़रमाएगा कि ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे, तो कहेंगे तेरी ज़ात पाक है, हमारा वली तो तू है कि ना कि ये, बल्कि ये लोग जिन्हों की इबादत करते थे, बल्कि इनमें से अक्सर को इन्हीं पर ईमान था। बस आज तुम में से कोई भी किसी के लिए किसी भी किस्म के नफ़ा और नुकसान का मालिक ना होगा। हम ज़ालिमों से कह देंगे कि इस आग का अज़ाब का मज़ा चखो जिसे तुम झुठलाते रहे हो। और जब इनके सामने हमारी साफ-साफ आयतें पढ़ी जाती हैं, तो कहते हैं कि ये एक शख्स तो तुम्हें तुम्हारे बाप-दादा के माबूदों से रोक देना चाहता है और कहते हैं कि ये तो गढ़ा हुआ झूठ है। हक़ इनके पास आ चुका, फिर भी काफ़िर यही कहते रहे कि ये तो खुला हुआ जादू है। इन मक्के वालों को ना तो हमने किताबें दे रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हों, ना इनके पास आपसे पहले कोई आगाह करने आया। इनसे पहले के लोगों ने भी हमारी बातों को झुठलाया था। हमने इन्हें जो दे रखा था, ये तो उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया, फिर देखो कि मेरा अज़ाब कैसा सख्त था। यानी कि पहले भी जो एक अभी तो जो मक्का वालों की जो बात है, इनके पास ना तो कोई किताब है कि जिसको देख कर के अल्लाह ताला की तरफ बातें लगा रहे हैं और अपने दीन को समझ रही हैं कि वो सच्चा है। यानी कोई किताब तो नहीं है ना, ये दीन तो उनका अपना बनाए हुए कुछ झूठ है। और दूसरी बात है कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि इसी तरह की और भी उम्मतें थी जिनके सामने जो है वो चीज़ें जब बयान होती थी तो वो झुठलाते थे। तो और वो ये कि बहुत ज़्यादा तरक्की में थे, जितना कि अरब लोग तरक्की में भी नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनकी तरक्की को मलिया-मेट कर दिया जब अज़ाब आया। और दूसरी बात है कि यहाँ पे एक शख्स की जो बात हुई है इन आयत में, तो उससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बाप-दादा का दीन जिसकी बड़ी बात करते थे कुफ़ारे मक्का, वो समझते थे कि ये ठीक है, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ खोल के बयान कर दिया कि कितनी गलतियाँ उनके अंदर हैं, तो उन्होंने ये आपका जुर्म जो-सा है वो समझ लिया कि इसके ऊपर आपके साथ ये सलूक किया। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ का बयान किया कि ये जुर्म तो नहीं है कि ये आप उसको जुर्म समझिए कि आपको आपके माबूदों से जो है वो रोक रहे हैं और जिससे कि आपके आबा-ओ-अजदाद इबादत करें, बल्कि वो तो अल्लाह का कलाम लेकर के आए, वो आपके साथ तो खैर-ख्वाही कर रहे हैं। तो कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ़ एक ही बात की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के वास्ते ज़िद छोड़ दो, मिल
कर या तन्हा-तन्हा खड़े होकर के सोचो तो सही कि तुम्हारा इस रफ़ीक को कोई जुनून तो नहीं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक बड़ी प्यारी बात इसी के बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह ताला खुद समझा रहे हैं कि ज़िद छोड़ के और इस ग्रुप से अलहदा होकर के, इस गिरोह से अलहदा होके जो कि दीन के खिलाफ बातें करता है, तो खुद सोचो कि क्या ये जो बात हो रही है, अकेले-अकेले खड़े होके कि या कि अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि और जो ये बात बयान कर रहे हैं, वो कोई जुनून में तो नहीं है। और जिस तरह से ये बातें करते थे कि उनके कोई ज़हन पे असर हो गया है, तो वो तो तुम्हें एक बड़े सख्त अज़ाब के आने से पहले डराने वाला है। कह दीजिए कि जो बंदा मैं तुमसे माँगूँ वो तुम्हारे लिए, मेरा बंदा तो अल्लाह ही के ज़िम्मे है। वो हर चीज़ पे बाखबर और मुत्तहा है। कह दीजिए कि मेरा रब हक और सच्ची बात की वही नाज़िल फरमाता है, हर है गैब का जानने वाला है। आप कह दीजिए कि हक आ चुका, बातिल ना तो पहली बार उभरा, ना दोबारा उभर सकेगा। कह दीजिए कि अगर मैं बहक जाऊँ तो मेरे बहकने का वबाल मुझ पर ही है। अगर मैं राह हिदायत पर हूँ तो बसबब इस वही के जो मेरा परवरदिगार मुझे करता है, बड़ा ही सुनने वाला और बहुत ही करीब है। अगर आप वो वक़्त मुलाहिज़ा करें कि जब ये कफ़ार घुबराए फिरेंगे और फिर निकल भागने की कोई सूरत ना होगी, तो ये वो दौर बयान फ़रमाया जा रहा है कि जब वो अल्लाह की गिरफ़्त में होंगे, जैसे कि मैदान हशर का मैदान है, तो और करीब की जगह से गिरफ़्तार कर लिए जाएँगे। उस वक़्त कहेंगे कि हम इस कुरान पर ईमान लेके आए, तो उस वक़्त उनको यकीन आएगा कि कुरान की बातें सच्ची थी और वो ईमान लाए, लेकिन उस कदर दूर जगह से ये कैसे हाथ पहुँच सकता है। इससे पहले तो उन्होंने इसके साथ कुफ़र किया और दूर-दराज़ से बिन देखे ही फेंकते रहे। यानी कि बात को समझे बगैर जब इंसान दुश्मनी पे उतर आता है, बात नहीं सुनता, सच्चाई को नहीं देखता और सवाल-ओ-जवाब उसके हिसाब से नहीं करता, उल्टा दुश्मनी पे उतर आता है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो है दूर-दराज़ से बिन देखे फेंकते रहे। इससे मुराद ये है, इनकी चाहतों और इनके दरमियान पर्दा हाइल कर दिया गया, जैसे कि इनसे पहले जैसे लोगों के साथ भी किया गया था और वो भी इन्हीं की तरह शक व शुबहे में पड़े हुए थे। यानी पहले भी जो कौमें थी, वो अपनी ख्वाहिशों पे जैसे चलना चाहते थे या जो बाप-दादा का दीन बनाया हुआ था, जो भी बातें वो लेके आते थे, लेम एक्सक्यूज़ेज़, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो भी पहले लोग भी ऐसे ही शक में पड़े हुए थे और यहाँ पे जो है ये जिस तरह का मामला है, यहाँ पे जो एक तरह की साइकी बयान कर दी गई है कि पहली कौमों ने भी इस चीज़ को इसी तरीके से हल्का समझा इस पैगाम को और उनके साथ भी क्या मामला हुआ और यहाँ पे सूरह सबा जो-सी है वो मुकम्मल हो जाती है और आगे हमारी सूरह फातिर जो-सी है वो शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिर जो है एक मक्की सूरत है और इसके 5 रुकू हैं और 45 आयत है। तो इसका तर्जुमा देखते हैं कि इस अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें सज़ावार हैं जो इब्तिदा आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाली, शुरू में अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फ़रिश्तों को अपना कासिद बनाने वाला है। यानी कि जब फ़रिश्ते जो उनसे हैं ये जो मखलूक है ये बहुत बड़ी भी है और इनके पास इस तरह से पर भी ये रखते हैं। मखलूक में जो चाहे बढ़ाता है, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस तरह की मखलूक का ये ज़िक्र करना कि इनके पास इस तरह से पर हैं, तो इससे मुराद जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील वगैरह बड़े फ़रिश्ते जो उनसे हैं, सरदार जो हैं और उनको अल्लाह ताला किस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे भेजते हैं। इसके अलावा भी फ़रिश्तों की बहुत सी ड्यूटीज़ हैं और जिस तरह से अल्लाह चाहते हैं वो काम होता है। अल्लाह यकीनन हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह जो रहमत लोगों के लिए खोल दे, इसका कोई बंद करने वाला नहीं। जिसको बंद कर दिया उसके सिवा इसका कोई जारी करने वाला नहीं। वही गालिब और हिकमत वाले हैं और लोगों तुम पर जो इनाम अल्लाह ने किए हैं इन्हें याद करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी खालिक है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी पहुँचाए? इसके सिवा कोई और भी माबूद यानी कि इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। फिर बस तुम कहाँ उल्टे जाते हो? अगर ये लोग आपको झुठलाएँ तो आपसे पहले के भी तमाम रसूल झुठलाए जा चुके हैं, तमाम काम अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं। लोगों अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम्हें ज़िंदगानी ये दुनिया धोखे में ना डाल दे और वरना धोखेबाज शैतान तुम्हें गफ़लत में डाल दे। याद रखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसे दुश्मन जानो। तो वो तो अपने गिरोह को सिर्फ़ इसीलिए ही बुलाता है कि वो सब जहन्नुम वासिल हो जाएँ। यानी शैतान की जो दिल की बात है, उसकी नीयत ये है कि जो कोई भी उसके साथ है वो खुद तो जहन्नुम में जाने वाला है, तो सब ऐसे बुरे काम करें, बुरी राह पे चलें, अल्लाह के खिलाफ हों कि वो सब के सब भी जहन्नुम जाएँ। तो जो लोग यानी कि उसकी दोस्ती जो-सी है वो अच्छी नहीं है, उनका अंजाम ये है। तो जो लोग काफ़िर हुए इनके लिए सख्त सज़ा है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए उनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा अजर है। तो ये तौहीद का पैगाम है जो अल्लाह ताला ने पहले कुरान के तमाम हिस्सों में बयान किया और अब मुख्तसरन अल्लाह ताला ने इनको इन आयत में बयान किया। क्या बस वो शख्स जिसके लिए उसके बुरे अमाल मज़य्यन कर दिए गए हैं, बस वो इन्हें अच्छा समझता है? तो बात ये है कि इंसान को हमेशा जैसे कि रमज़ान 11 महीने के बाद आता है और हम इसको इसमें कुरान पाक पे ज़्यादा तवज्जो के साथ अगर पढ़ते हैं, जो आम दिनों में भी लोग नहीं अगर उसके साथ तवज्जो रखते, तो बात ये है कि जब इसके साथ जुड़ते हैं तो पता चलता है कि कितनी-कितनी गलतियाँ हैं जो इंसान से सरज़द हो गई हैं। तो इन्हें जिनको वो अच्छा समझता है, तो बात ये है कि सबसे बड़ी खराबी तो उस इंसान के साथ होगी जो कि सारी ज़िंदगी अपने बुरे अमाल को अच्छा ही समझता हुआ गुज़ार के चला जाए और आखिरत में जाके पता चले कि वो तो उसके बुरे अमाल थे। तो ये तो बहुत बड़ी उसके साथ खराबी होगी। यकीन मानो कि अल्लाह जिसे चाहता गुमराह करता है, जिसे चाहता चाहे राह रास्त दिखाता है। बस आपको इन पर गम खा कर के अपनी जान हलाकत में ना डालनी चाहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं इससे अल्लाह बखूबी वाकिफ़ है। अल्लाह ही हवाएँ चलाता है जो बादलों को उठाती है, फिर हम बादलों को कुछ ज़मीन की तरफ ले जाते हैं और इससे ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदा कर देते हैं। इस तरह दोबारा जी उठना है। जो शख्स इज़्ज़त हासिल करना चाहता तो अल्लाह ही की सारी इज़्ज़त है। यानी इज़्ज़त दार जो दुनिया में बन रहे होते हैं तो असल में तो इज़्ज़त अल्लाह की है और तमाम सुथरे कलिमात उसी की तरफ चढ़ते हैं। यानी कि जो तारीफ़ की जाती है, जो ज़िक्र किया जाता है, वो सब का सब जो-सा है अल्लाह ताला के यहाँ पे बुलंद होता है, जमा होता है और नेक अमल इनको बुलंद करता है। यानी जहाँ पे इंसान माली इबादत जहाँ पे इंसान जो है वो जो है इस तरह की इबादत करता है जो ज़िक्र अज़कार वाली हो, जिसमें कोई माल खर्च नहीं हो रहा, जिसमें कोई जिस्म की हरकत भी इस्तेमाल नहीं हो रही। इसी तरीके से नमाज़ जो है वो तो बदनी इबादत है, लेकिन इसमें माल खर्च नहीं हो रहा, तो लेकिन ये एक नेक अमल के तौर के ऊपर आ जाता है। तो बात ये है कि जो ज़िक्र अज़कार हो, नेक बातें हो, अच्छे कलिमात हो, उसके साथ नेक अमाल जो उनसे होते हैं, नेक अमल में इबादत भी आ गई हैं, इसके अलावा किसी की मदद करना भी आ गया है, तो वो उनको बुलंद कर देता है। और जो लोग बुराइयों के दाव घात पे लगे रहते हैं, उनके लिए सख्तर अज़ाब है, लेकिन उनका ये मकर बर्बाद हो जाएगा। लोगों अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से फिर
नुतफ़े से पैदा किया है, फिर तुम्हें जोड़े-जोड़े बना दिया, औरतों का हामला होना, बच्चों का पैदा होना सब इसी के इल्म से है। और जो बड़ी उम्र वाला दे दिया जाए तो जिसकी उम्र घटे वो सब किताब में लिखा हुआ है। यानी किसकी कितनी उम्र है ये अल्लाह ताला ने पहले से ये सूरत हाल लिख दी हुई है। अल्लाह पर ये बिल्कुल बहुत आसान है। तो ये और वो दोनों दरिया मिलकर भी बराबर नहीं हो जाती। ये मीठा है और प्यास बुझाता है, पीने में खुशगवार, और दूसरा खारी है, कड़वा। तुम इन दोनों में से ताज़ा गोश्त खाते हो और ज़ेवरात निकालते हो, जिन्हें तुम पहनते हो, और आप देखते हैं कि बड़ी-बड़ी कश्तियाँ पानी को चीरने फाड़ने वाली और दरियाओं में हैं, ताकि तुम इसका फ़ज़ल ढूँढो, ताकि तुम इसका शुक्र करो। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो मज़ाहिर कुदरत तुम्हारे इर्द-गिर्द पाए जाते हैं, ख़ास तौर पे पानी जो है दरिया की सूरत में हो, समंदरों की सूरत में हो, तो जो पहले भी ज़िक्र हुआ था कि जो एक आड़ और एक जो लेयर होती है जिसकी वजह से 2 दरियाओं का पानी या समुद्रों का पानी आपस में नहीं मिलता, और इससे जो-सा है अल्लाह ताला की ये भी एक कुदरत है कि एक जानिब जो है मीठा पानी होता है, दूसरी जानिब खारा पानी होता है, और इन दोनों के अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं और इंसान इनसे फ़ायदा हासिल करता है। तो इन दरियाओं में है ताकि तुम इसका फ़ज़ल ढूँढो, उनका शुक्र अदा करो, और रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है कौन? यानी अल्लाह ताला। और आफ़ताब और महताब को इसी ने काम पे लगाया। आफ़ताब और महताब उर्दू में कहा जाता है जिनको चाँद और सूरज। हर एक मियाद मुअय्यन पर चल रहा है, यानी कि एक फ़िक्स टाइम लिमिट है, उसके ऊपर चल रहे हैं, और यही है अल्लाह का तुम सबका पालने वाला, उसी की सल्तनत है। जिन्हें तुम उसके सिवा पुकार रहे हो, वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। अगर आप जब खजूर खाएँ तो देखें उसके अंदर उसकी गुठली के ऊपर एक बारीक सा छिलका होता है, उसे जो है क़ित्मीर कहा जाता है अरबी ज़बान में। अब देखिए खजूर की गुठली जो है एक गुलाब में अगर लिपटी हुई है, उस गुलाब की भी कोई कीमत होगी? अगर देखा जाए तो। दुनिया में जितनी भी खूबसूरती और जो कायनात में जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, या जो उनका कहना चाहिए उसके बदले में जो कीमत मिलती है, क्या खजूर की गुठली के ऊपर जो गुलाब है, उसकी उतनी कीमत है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो जिन लोगों को अल्लाह ताला के अलावा लोग समझते हैं ना कि ये मदद कर सकते हैं, वो कोई भी हो, ज़िंदा हो, मुर्दा हो, बुत हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो नहीं कर सकते, इतनी भी नहीं मदद कर सकते, मामूली सी हकीर सी जितनी खजूर के ऊपर ये कितमीर है, यानी उसका गुलाब है। ये है वो शिर्क से बचना। और शिर्क क्या है? ये समझना कि वो ये कर देंगे, फलाँ ये कर देगा, फलाँ के पास ये ताकत है। कोई भी ताकत हो, किसी को जो दी हो, किसी को इल्म जो किसी ने अल्लाह ने दिया है, पीछे अल्लाह ने दिया है, तो काम जो है अल्लाह ने ही करना है, तो लिहाज़ा किससे राब्ता करना है? अल्लाह से। तो अगर तुम इन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, यानी कि जो बेजान बुत हों या मरे हुए लोग हों, और यहाँ किसी को कोई पीर साहब को बैठे हुए अपने घर से पुकार रहा हो, तो अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो ये फरियाद रसी नहीं करेंगे, बल्कि क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इनकार कर जाएँगे। आपको कोई भी हक अल्लाह ताला जैसा खबरदार खबरें ना देगा। तो यानी अल्लाह ताला जो मुस्तक़बिल की बातें बयान कर रहे हैं, ये बातें कोई और नहीं ऐसे बयान करेगा सच्ची। है लोगों क्योंकि उनके पास इल्म है, वो मालिक हैं, वो तो कर सकते हैं। लोगों तुम अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह बेनियाज़ खूबियों वाला है, अगर वो चाहे तो तुमको फ़ना कर दे और एक नई मखलूक पैदा कर दे। और ये बात अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं है, कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अगर कोई घरां-बार एक दूसरे को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो वो इससे कुछ भी ना उठाएगा, को क़राबतदार ही क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी रिश्तेदारी क्यों ना हो, प्यार मोहब्बत दुनिया में क्यों ना हो, आखिरत के दिन में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। लिहाज़ा अपने हिस्से का काम, अपनी नमाज़ें, अपना दीन पे चलना, जो ज़िंदगी दी गई है वो करना चाहिए। वालिदैन अगर किसी के नेक हों और औलाद इतना ज़्यादा अच्छा नेक अमल नहीं अगर कर रही, तो उनको ये समझना है कि उनका अमल उनके साथ उनकी कब्र में जाएगा और नामा माल उनके हाथ में आएगा। वालिदैन का नेक होने की वजह से नहीं होगा। इसी तरीके से जो लोग अपने आप को नबियों की औलादें कहते हैं, उनके साथ उनको जोड़ते हैं, किसी भी नेक इंसान के साथ जोड़ते हैं, तो बात ये है कि उन लोगों की नेकी उन तक है। अलबत्ता उसका नेक असर ख़ानदानों में ये होता है कि लोग नेकी की राह पे चलते हैं, जो उनकी दुआएँ होती हैं, जो उनका नेक अमल होता है उसकी वजह से। लेकिन फिर भी जो नेक अमल उन्होंने किए उसका बदला उनको मिलेगा डायरेक्टली, और ये कि किसी और को नहीं मिलेगा। और उस दिन एक-एक नेकी को इंसान तरसेगा कि उसका नामा अमाल जो है बेहतर हो और वो बचे दोज़ख से। तो लिहाज़ा इंसान को ये सोचना चाहिए। तो वहाँ पे कोई रिश्तेदारी नहीं काम आएगी। तो आप सिर्फ़ इन्हीं को आगाह कर सकते हैं जो गायबाना तौर पर अपने रब से डरते हैं और नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। तो जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो इस चीज़ को मानते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। लिहाज़ा नमाज़ की पाबंदी ईमान के साथ लाज़िम है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप ऐसे ही लोगों को समझा सकते हैं, और जो भी पाक हो जाए और अपनी ही नफ़ा के लिए पाक होगा, और जो भी कोई नेकी का काम होगा तो इंसान अपने लिए करे, लौटना अल्लाह की तरफ है। अंधा और आँखों वाला बराबर नहीं, ना तारीकी और रोशनी, ना छाँव और धूप। तो ये मिसालें पेश की गई हैं। क्या ये दोनों एक जैसी नहीं? ये दोनों फ़र्क किस्म की चीज़ें हैं। और ज़िंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह
जिसको चाहता है जिसको चाहता है सुनवा देता है। तो यही अल्लाह ताला की हिदायत जो है, अल्लाह ताला जब किसी को चाहते हैं तो उस तक वो पहुँच जाती है, और आप इन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, और हम ही ने आपको हक देकर खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डर सुनाने वाला ना गुजरा हो। और ये लोग आपको झुठला दें, तो जो लोग इनसे पहले हो गुजरे हैं उन्होंने भी तो झुठला दिया था। इनके पास भी इनके पैगंबर मोज़े और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आए थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये लोग इनके साथ बुरा सलूक कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने बताया कि पहले नबियों के साथ भी यही चीज़ की गई है और रोशन किताबें आई हैं, लेकिन फिर भी इनको झुठलाया था उनकी कौमों ने। फिर भी मैंने इन काफिरों को पकड़ लिया, सो मेरा अज़ाब कैसा हुआ। क्या आपने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा है, और फिर हमने इसके ज़रिए से मुख्तलिफ रंगों के फल निकाले। पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्से हैं सफ़ेद और सुर्ख, इनमें भी रंगतें मुख्तलिफ हैं और बहुत गहरे स्याह। और इस तरह आदमी और जानवर और छुपाइयों में भी बात ऐसी हैं कि इनकी रंगतें मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला से इसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हो। अल्लाह वाकई ज़बरदस्त और बड़ा बख्शने वाला है। इंसानों की जो रंगतें बनाई गई हैं उनको फ़र्क फ़र्क बनाया गया है, तो ये अल्लाह ताला के काम है, और ये निशानी है अल्लाह ताला की। जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं, नमाज़ की पाबंदी रखते हैं, और जो कुछ हमने इनको अता फ़रमाया इसमें से पोशीदा और लानिया खर्च करते हैं, तो अल्लाह वना जल्ला मिन्हु, अल्लाह ताला हमें, हमारी औलाद, वालिदैन, बहन भाई और ज़ौज को इन लोगों में से करे, तमाम मुसलमान को वैसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारे में ना होगी, ताकि उनको उनकी उजरतें पूरी दें, यानी कि जो उन्होंने दुनिया में काम किया उसका बदला अल्लाह पूरा दे, उनको अपने फजल से और भी ज़्यादा दे। बेशक वो बड़े बख्शने वाला कदरदान है। और ये किताब जो हमने आपके पास वही के तौर पे भेजी है बिल्कुल ठीक है, जो कि अपने से पहली किताबों की भी तस्दीक करती है। अल्लाह अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला है, खूब देखने वाला है। फिर हमने इन लोगों को इस किताब का वारिस बना दिया जिनको हमने अपने बंदों में पसंद फरमाया। ये जो किताब के वारिस बनाने की बात है, जिसमें अल्लाह ताला ने जिसका ज़िक्र फरमाया है, ये जो कि अब आई है, और उस वक़्त यानी कि उम्मत मुहम्मदिया को वारिस बना दिया है, और इनका आगे ज़िक्र मज़ीद होगा। और इससे पहली किताबों का जो ज़िक्र है, अब सवाल कभी-कभार ये होता है कि जी पहली किताबों का ज़िक्र होता है, उन पे ईमान का ज़िक्र है, लेकिन ये कि वो किताबें जो है क्या उनकी शरीयत के ऊपर भी उसका अमल, तो उसकी शरीयत के ऊपर तो अमल नहीं होगा। उनकी बातों का सिर्फ़ ये कह देना कि वो किताब जौन-सी अल्लाह नहीं उतारी थी, वो पैगंबर भी सच्चे हैं जिन पे उतरी थी, ठीक है? और जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम हुए, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुए, जिनको कि यानी कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात यानी तौरा उतरी थी, और इसी तरीके से इंजील जौन-सी है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी थी, जिसको बाइबल कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सच्ची किताब है, लेकिन इनके ऊपर जब रद्दो-बदल कर दिया गया और इनके अंदर तब्दीलियाँ कर दी गईं, उन नबी के अहकामात पे लोगों ने अमल नहीं किया, तो उसके बाद जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा, तो उस ज़माने में और आज तक के लिए जो अब इंसानों ने जितनी गलतियाँ कर ली थी, जो सब कुछ काम गलत किए गए थे, और जो चीज़ें वहाँ पे हुक्म तब्दील कर दिए गए थे, जो असल में अल्लाह के हुक्म है, सही चीज़ को सही तरीके के साथ, अब ये जो एडिशन आया है कुरान पाक का, ये फ़ाइनल है, क्योंकि नबी भी फ़ाइनल है, ये कलाम जो आया है, अहकामात आए, ये भी फ़ाइनल है। अब इसके अलावा कोई और किताब अब नहीं आएगी। इसी किताब ने ता क़यामत चलना है। इसकी हिफाज़त का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद ले लिया है, तो ये बात ज़हन में रखें। तो उन किताबों का ज़िक्र सिर्फ़ इसलिए है कि जी बिल्कुल वो थीं, वो अल्लाह के ही नबी थे, कोई ऐसी वो नहीं है कि उनके ऊपर यकीन ना हो, लेकिन ये है कि उन किताबों पे अमल नहीं है। इसीलिए उधर से दीन को सीखना या ये पता करना कि जी ये हुक्म है कि नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं बाकी रह गई। इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने हर तरह की चीज़ जो है वो बयान कर दी है इस किताब के अंदर, और इसी के ऊपर चलने का हुक्म है, तो जो पहले लोग होंगे जो उस किताबों के ऊपर चल रहे होंगे, जब तक वो इसके ऊपर ईमान नहीं लेके आएंगे, तब उनका दीन और ईमान भी जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो लिहाजा है ये बात। अब इस किताब का जो वारिस अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पसंद फरमा दिया है, इस आयत की तरफ चलते हैं। फिर बाज़ में से तो उनमें अपनी जानों पर ज़ुल्म करने वाले हैं, और बाद में जो उनसे मतवसत दर्जे के हैं, यानी मिडल लेवल पे रहते हैं, जो इसके ऊपर अमल करते हैं। बाद जो है अपनी जानों पर जुल्म करने वाले, यानी इसका मुकम्मल जो सा है वो इनकार कर देते हैं, इसके तमाम जो सी ये बातें नहीं मानते। तो अब हमें तो बात समझ आ गई, जो भाती मानता है उसको क्या कहा जाएगा। और जो बाज़ जो है वो एक दरमियाने लेवल पे लेके करते हैं, और बाज़ उनमें अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्की किए चले जाते हैं, ये बड़ा फजल है। दुनिया में समझा जाता है कि जो जिसको दुनिया बड़ी मिली हुई हो, जिसके पास सब ठाट बाट सब हर तरह की चीज़ समझ लें, गिनवाने की भी ज़रूरत नहीं, तो वो बड़ा तरक्की किया है, उसके ऊपर बड़ा करम है, फजल है। अल्लाह कह रहे हैं ये फजल उसका है कि जो नेकियों में तरक्की किए जा रहे हैं, तो हमें क्या अल्लाह से ये फजल नहीं मांगना चाहिए। भले हमें समझ ना आए कि अल्लाह ताला हमें फ़ज़ल ये कैसे अता करेंगे, कैसे तौफ़ीक देंगे। और देखिए अल्लाह ताला जहाँ पे इस फ़ज़ल की बात करते हैं ना, तो वहाँ अल्लाह ताला ऐसी दुआओं का भी ज़िक्र कर रहे हैं कि जिसके अंदर ये बात भी शामिल है कि अल्लाह ताला को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और अच्छाइयाँ, और दुनिया में गुज़ारे की चीज़ें अच्छी बेहतरीन यहाँ पे भी वहाँ पे भी आखिरत में भी माँगने में कोई इसमें दो राय नहीं है कि मना नहीं किया गया, दुआओं में ही शामिल है, ठीक है? इसी के अंदर सारा वो पैकेज आ जाता है। लेकिन अल्लाह ने फ़ज़ल किसको कहा, वो ये कि नेकी नेकी करते चले जाते हैं, यानी उनको दीन की समझ आ जाती है। और उससे जल्दी नहीं कि अल्लाह ताला ने 3 तरह के ग्रोह बयान कर दिए कि जिनको ये किताब दी गई, तो उसके बाद लोगों ने 3 तरह के ग्रोह हो गए। अब हमें किन कौन से ग्रोह में शामिल होना है? तो ये जो फ़र्ज़ में कोताही करते हैं पहला ग्रोह, और नहीं मानते बातों को, हद से गुज़र जाते हैं, अपनी मनमर्ज़ियाँ कर रहे हैं। फिर ये कि जो दरमियानी तरीके से चलते हैं, और हमें नहीं मालूम हम किस जगह के ऊपर हैं। और फिर ये कि आखिरत वाले जो आखिरी जिनको बयान किया गया, वो ये कि वो तो नेकी करते चले जाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो लिहाज़ा अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरी वाले दर्जे वाले लोगों में, वो जो-सा है जिनका आखिर में ज़िक्र किया गया है, उनमें जो है वो शामिल कर दें। तो क्या है कि आगे जो बयान आ रहा है वो बड़ा ही खूबसूरत है। वो बागात हमेशा रहने वाले के जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएँगे, और पोशाक उनकी वहाँ रेशम होगी। सुबहान अल्लाह, अल्लाहुम्मा नज्जलना मिन्हु आमीन। बात ये है कि दुनिया में भी अभी भी ऐसे ट्रेंड है, मर्द हो या औरतें, तो बाद ऐसी ट्रेंड वाली चीज़ें होती हैं, बड़ा फ़ैशन, बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं। अब जितनी लिहाज से प्रोडक्ट तैयार जो होती हैं, कोई बड़ी करोड़ों में भी हो सकती है, अरबों में भी हो सकती है। रेयर केस भी होती हैं कि जो सिर्फ़ जिनको जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो उसको खरीदते हैं, उसको
पहन के बड़े फ़ख्रिया तौर के ऊपर अपनी माल और दौलत का इज़हार किया जाता है। अल्लाह ताला वहाँ पे जो अल्लाह ताला की बात को मानेंगे, तो वहाँ का जो कंगन है या वहाँ पे जो ऐसे एम्बेलिशमेंट जो दी जाएँगी, ऐसे ऑर्नामेंट्स समझ लें, या इनको कहें कि अल्लाह ताला ऐसे लिबास का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला ऐसी ज्वेलरी का ज़िक्र कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों का ज़िक्र कर रहे हैं, उसका जन्नत का मुकाबला दुनिया में कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही आला तरीन किस्म की चीज़ें होंगी। तो यकीन रखें कि जो यहाँ पे लोगों को देख कर के किसी का दिल भी कर रहा है ये इन चीज़ों का, तो इन चीज़ों में तो तबाह हो जाना है कि इंसान इन इसके पीछे लगे कि इतना कमा करके लोगों को दिखाने के लिए तो आप ये पहन के दिखाएँ कि ये चीज़ आपके पास भी है, ये ब्रांडेड है, ये फलाँ इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस चीज़ से नहीं कराना, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो दुनिया में अल्लाह ताला के दीन पे चलते हुए अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला ने तो वादा कर लिया है कि वो बागात में हमेशा रहने वाले होंगे। तो बागात वाली बात भी कुछ कर लेते हैं कि अगर इंसान के घर में जैसे देखेंगे इंसान को नेचर अगर पसंद है, उसके घर में अगर बाग और पौधे लगे हुए हों, खूबसूरती होती है, इससे बड़ा सुकून होता है। इन जगहों पे बैठना, परिंदे इस जगह पे आते हैं, और जहाँ पे बिल्कुल बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, वो कितनी बेअबान किस्म की वो जगह लग रही होती है, उदास सी जगह लग रही होती है, तो बागात में दिल इंसान का खुश होता है, खुशकुन मंज़र होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जन्नतों का ज़िक्र किया है इंशाअल्लाह ताला, तो ये वहाँ वो लोग दाखिल होंगे तो फिर उनको अल्लाह ताला वो सोने के कंगन भी पहनाएँगे और मोती पहनाए जाएँगे, और वहाँ के पोशाक वहाँ उनकी रेशम होगी। तो जन्नत के रेशम की पोशाक वहाँ पे है, जो चीज़ जन्नत में जिसका वादा है, इसीलिए दुनिया में मर्दों को कुछ जगहों पे वो चीज़ें मना की गई हैं, और अगर ख़वातीन को अगर वो जो-सा है इजाज़त दी गई है, और हो सकता है कुछ लोग उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते अगर, तो कोई बात नहीं, जन्नत में जाके ये सब चीज़ें मिलेंगी, और कहीं कहेंगे कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि जिसने हमसे गम दूर किया, बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला, बड़ा कदरदान है, जिसने हमको अपने फ़ज़ल से हमेशा रहने के लिए मुकाम पर ला उतारा, यानी कि वो कुदरत नहीं रखते थे, लेकिन अल्लाह ऐसा करने कर दिया। तो जी बिल्कुल, हमारे अमाल हम कितना भी चाहें, नीयतें कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो अल्लाह क्या करेंगे, अपने करम से ही किसी को जन्नत में दाखिल कर सके, करम से ही इंसान वहाँ जाएँगे। तो यही चीज़, इस चीज़ को जन्नती वहाँ पे, इस चीज़ को दुनिया में भी वो लोग समझ चुके हैं कि वो उनकी अपनी बड़ाई नहीं है, अल्लाह देंगे जो जिसको जो तौफ़ीक तो इंसान वो अमल करेगा, तो अपने फ़ज़ल से वो उस मुकाम पे वो पहुँचेंगे, उसके फ़ज़ल से वो पहुँचेंगे जहाँ ना हमें कोई तकलीफ़ होगी, ना हमको कोई ख़स्तगी पहुँचेगी, यानी वहाँ पे कोई वियर एंड टियर नहीं होगी, वहाँ पे कहना चाहिए कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ वहाँ पे पैकेज के अंदर ही मिल रहा है, हर चीज़ वहाँ पे कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जो बातें हैं, इनको हदीस भी इसके बारे में कुछ हैं, वो ये कि हदीस में आता है कि रेशम और दिबाज दुनिया में मत पहनो, और इसलिए कि जो इस दुनिया में पहनेगा और इसे आखिरत में नहीं पहनेगा। तो सही बुखारी की हदीस 5832 है, सही मुस्लिम की हदीस 2073 है। बात ये है कि ये ओवरऑल एक इस चीज़ को इस तरह से बयान किया जा रहा है, और ये खास तौर पे ख़वातीन के लिए इसकी ममानियत नहीं है, अलबत्ता मर्दों के लिए जो रेशम है ना, इन चीज़ों की ममानियत है, तो इस लिहाज से उस चीज़ को देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की इजाज़त दी हो, हदीस में हम ये देखें कि उसको मना किया गया हो। ये नहीं, मैं ख़वातीन के लिहाज से बात कर रही हूँ कि उनको रेशम पहनना इजाज़त है, तो ऐसा नहीं होगा कि हदीस में उसको मना किया गया हो, ठीक है? जो हदीस है और जो कुरान पाक है, दोनों एक साथ जो-सा है वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, कभी भी कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। जो अल्लाह के यहाँ एक चीज़ कानून इधर पाया जाता है, वही चीज़ हमें हदीस में उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उसकी तायीद मिलेगी, उसको कैसे करना है वो मिलेगा, ठीक है? तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि शायद ख़वातीन के लिए भी मना है, ये बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि किसी का अपना वो उस तरह से हो, लेकिन अल्लाह ने जो चीज़ हलाल जिसके लिए रखी है वो हलाल है, उसको हम हराम नहीं कर सकते, ये हमारा दीन है, ठीक है? और जो अल्लाह ने कह दिया कि ये हराम है, उसको हम हलाल नहीं कर सकते, यही हमारा दीन है, ठीक है? तो यहाँ पे जन्नतियों का ये कौल इस तरह से दर्ज हो, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में करे, और जो लोग काफ़िर हैं उनके लिए दोज़ख की आग तैयार है, ना इनमें क़ज़ा आएगी, ना मर ही जाएँ, यानी वहाँ मौत इनको आएगी, ना दोज़ख का अज़ाब है कि इनसे हल्का किया जाए। हम हर काफ़िर को ऐसी ही सज़ा देते हैं, और वो लोग इसमें चिल्लाएँगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमको निकाल ले, हम अच्छे काम करेंगे, बरख़िलाफ़ उन कामों के जो किया करते थे। अभी इस किस्म की ज़हनियत के लोग लगने लगता है उम्र तो बड़ी हो गई है, लेकिन वो जो बचपना है ना, वो रुख़सत नहीं हुआ। ये बिल्कुल वही वाला एटीट्यूड है कि जब किसी को दीन की बात बताई जाए, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा देखी जाएगी, एक तो ये लेज़ीनेस होती है। फिर उसके बाद ये कि बिल्कुल हठधर्मी पे उतरना कि बिल्कुल इस चीज़ को नहीं किया जाएगा, बात को समझना ही ना, क्योंकि एक जब इंसान की उम्र छोटी होती है, बचपना होता है, या उसकी इतनी अक्ल नहीं उसको मौजूद होती, तो उस वक़्त वो ऐसी बातें करे या बात को उसको समझ नहीं आ रही, तो समझा जा सकता है कि अभी इतनी इंटेलेक्ट की वो उसके अंदर जज़्ब होने की सलाहियत नहीं है कि वो कोई अक्ल की बात को समझ सके, और वो ये तो बचपन का दौर है, खेल जैसे कहा जाता है कि जी खेलने-कूदने का दौर है और बात को समझ नहीं आया। तो बात ये है कि बाज़ जगहों के ऊपर अगर बचपन ठहर ही गया है, उनका जिस्म बड़ा होता चला गया और दिमाग उनके अंदर इस तरह का है कि वो किसी चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहे, पैगाम को सीरियस नहीं ले रहे, अल्लाह की बात को सीरियस नहीं ले रहे और किताब को सीरियस नहीं ले रहे, तो वो फिर वो अपने उसी माज़ी में उस तरह से रह रहे हैं कि जैसे उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो अल्लाह ताला यही तो इस किताब में बार-बार बयान करे कि एक इंसान के ऊपर एक ज़िम्मेदारी दी गई है, उस ज़िम्मेदारी को निभाना है। ये जो वादा किया गया कि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो भी जाते हैं या बाद में या पहले, तो बात ये है कि अब एक ज़िम्मेदारी डाल दी गई है, इस ज़िम्मेदारी को करके दिखाना है। ये ज़िंदगी का कुल असरात है कि आप कैसे उस ज़िम्मेदारी को करके दिखाते हैं। इसमें हर इंसान फ़र्क होगा, हर दौर भी फ़र्क होगा जो एक इंसान पे उसकी एज गुज़रती है। जैसे-जैसे बात समझ आती चली जाएगी, वैसे-वैसे अमाल में पुख्तगी आएगी, वैसे-वैसे अच्छे काम करने का दिल चाहेगा, उस तरफ इंसान लगेगा। क्योंकि जब एक बात पैक्ट कर लिया गया है, तो जब कोई बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है, तो इंसान चाहता है कि उसका प्रॉफ़िट बढ़े, उसका बिज़नेस ग्रो करे। तो इसी तरीके से जो ये डील है, जो ये वादा किया गया है, इसके अंदर मज़ीद खूबसूरती आए तो नेकियों की तरफ जाया जाता है। जैसे अल्लाह बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं, तो इंसान को इस मैच्योरिटी की तरफ आना है। मैच्योरनेस ये है कि इंसान अपने आप को जाने कि इस दुनिया में ज़िंदगी का मकसद क्या है, ठीक है? और मुझे कितनी इजाज़त है, कितनी नहीं इजाज़त है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन या पाबंदियाँ
और ये जितनी आज़ादियाँ दी गई हैं वो अपनी हदूद में रहते हुए इस्तेमाल करनी है, और जो चीज़ अगर नहीं दी गई तो उसका जन्नत में वादा है, दैट्स ऑल। तो वो चीज़ है कि वो वहाँ पे अगर ये चीज़ समझ ना आ सके तो फिर वहाँ पे जो एक चीज़, एक और रूल भी बयान कर दिया गया है कि इस बात को दुनिया में समझ के अमल कर लेना, यही टाइम है, इसके अलावा कोई और टाइम नहीं मिलेगा। जब वहाँ पे रिज़ल्ट डे पे जाया जाएगा, यौमुद्दीन वाले दिन, वहाँ पे कितना भी कोई तड़प ले, दरख्वास्तें करवा ले, किसी नबी से कह के करवा ले, इससे दैट अगर करवा ले, जिसकी की इजाज़त नहीं है अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, तो वो कोई वहाँ पे वो नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर कोई करवा भी ले तो दुनिया वापस किसी एक इंसान या एक गिरोह के लिए या उन लोगों के लिए वापस से सारी दुनिया, सारा सिस्टम बनाया जाएगा, क्योंकि ये तो सिस्टम तबाह कर दिया जाएगा। ये तो सिर्फ़ एक टाइम के लिए है। ये बात समझ आ रही है ना? जैसे कोई फंक्शन या पार्टी होती है, तो टेंट्स लगाए जाते हैं, या अगर किसी मार्की में होता है तो उसके उस जो सिस्टम होता है या जो फंक्शन होता है उसके हिसाब से उसको सजाया जाता है। अब वो जो फंक्शन का टाइम था वो ख़त्म हो गया, वो जब तक के लिए था, या किसी की अगर कैंपेन है, अगर वो कैंपेन जो-सी है 4 दिन चलती है, 10 दिन है, वो तब तक उस जगह को सजाया गया है। वो जब तक सजावट तब तक रहेगी जब तक कि वो उस तक का फंक्शन है। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो दोबारा वो चीज़ तो नहीं की जा सकती ना, किसी एक ग्रो के लिए जिसने उसको मिस कर दिया हो। जब दुनिया में हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, तो हमें ये दुनिया की हकीकत और बाकी जो है आखिरत और दोज़ख और ये सारी बातें क्यों नहीं समझ आ रही? तो उस वक़्त फिर जो लोग इस तरह की बातें जाकर के वहाँ पे अल्लाह से आर्ग्यू करेंगे और कहेंगे कि हम तो अच्छे काम करेंगे, हमारा पक्का प्रॉमिस है और हमें वापस भेज दे, तो अल्लाह कहेगा क्या हमने तुमको इतनी उम्र ना दी थी कि जिसको समझना होता वो समझ सकता? अब ये कैसी समझ है कि दुनिया के कामों को देखिए, सबको समझ है कि हमने ये कारोबार करना है, ऐसा घर बनाना है, ये सोसाइटी में फ़ायदा है, इस बिज़नेस डील में अच्छा है, यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दो, ये वाले जो-सा है हम अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कर लें, ये वाले जोड़े पहन लें, ये वाली चीज़ें ऐसे कर लें, बाकी सब चीज़ों की समझ है। ये समझ खत्म हो गई है कि अल्लाह के दीन के ऊपर चलना है। तो बात ये है कि वो समझ सकता है जो तुम्हारे पास डराने वाला भी तो भेजा था, सो मज़ा चखो, ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। अब ज़ुल्म किसने किया किसके ऊपर? अल्लाह ने किया या इन्होंने अपने ऊपर खुद किया? ठीक है? बेशक अल्लाह जानने वाला है आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों का, बेशक वही दिल की बातों का जानने वाला है, वही है ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में आबाद किया। सो जो शख्स कुफ़्र करेगा, उसके कुफ़्र का वबाल उस पर पड़ेगा, और काफ़िरों के लिए उनका कुफ़्र उनके परवरदिगार के नज़दीक नाराज़गी ही बढ़ाने के लिए बाइस होता है। और जो जितना कोई गलत काम करता है तो अल्लाह ताला की जौन-सी है नाराज़गी उससे बढ़ती है। काफ़िरों के लिए उनका कुफ़्र खसारा ही बढ़ने का बाइस है, तो उससे क्या होता है कि इससे फिर जो नाकामी होती है, वो बढ़ती है। तो डेफ़िसिट समझ लें, जैसे ये मनी मैटर में जब किसी की जो बैलेंस शीट होती है, जितना भी काम उसका हो रहा है वो मुनाफ़ा प्रॉफ़िट की तरफ जौन-सा है, वो बिल्कुल तबाही के दहाने की तरफ ही उनका काम जा रहा हो, तो ये बिल्कुल वो हो गया। आप कह दीजिए कि तुम अपने शरीकों का हाल तो बतलाओ कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो। मुझे ये बतलाओ कि उन्होंने ज़मीन में कौन-सा जुज़ बना दिया, ऐसी कौन-सी चीज़ बना दी है जिसको आसमानों में कुछ तो उनका हिस्सा हो। हमने कोई इनको किताब दी है? ये नहीं, अल्लाह ताला सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि जिनको कि इंसान अल्लाह के अलावा पुकारता है या उनकी तरफ जाता है, तो क्या उनका कोई शेयर है? क्या वो शेयर होल्डर है इस पूरी कायनात में किसी भी जगह के ऊपर? बता दें। अल्लाह के साथ तो कोई भी शेयर नहीं करता, हम खुद नहीं करते। हमारा कोई अपना इंसानों का हिस्सा नहीं है, जो आज तक चले गए बड़े-बड़े बिलियनेयर्स हुए, या आज के दौर में तो बिलियनेयर्स होते हैं, ठीक है? और पहले ज़मानों में बादशाह, शहंशाह इस टाइप की चीज़ें होती थी, ठीक है? तो कोई भी नहीं है। तो क्या है कि अल्लाह ताला ने क्या हमने इनको कोई किताब दी है कि नहीं, जो अल्लाह ताला की बातों का इनकार कर रहे हैं? क्या उनको कोई किताब मिली है, ये कि उसकी दलील पर ये कायम हो के उनकी लॉजिक उसके मुताबिक बना रहे हैं? बल्कि ये ज़ालिम एक-दूसरे से निरे धोखे की बातों का वादा करते आ रहे हैं, और पीछे से बड़ा इनके साथ जो इनका बड़ा कौन है? शैतान, जो इनकी इस बातों की तरफ लगा रहा है। पूरा किसी कल्ट का, किसी इज़्म का, किसी ट्रेंड का, किसी मज़हब को जो बनाया जाता है अल्लाह के दीन के खिलाफ, आज नहीं हमेशा से जो ऐसा कुछ होता है ग्रो, उनके पास एक पूरी-पूरी डॉक्ट्राइन होती है कि ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है। तो सारी बातें क्या होती हैं? कोई रवायतें होती हैं जी, रसूम और रिवाज होता है, ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने से ये हो जाएगा, ये शगुन हो जाएगा, ये यहाँ से ये चीज़ मिल आएगी। ये चीज़ें नहीं है। कोई बनी-बनाई, सुनी-सुनाई बातें, ये नहीं होती। तो ये है निरे धोखे की बातों का वादा करते हैं, और उनके पीछे इनका बड़ा शैतान होता है जिनको ये सिखाता है। लेकिन ये बात है कि अल्लाह आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है कि वो टल ना जाए, यानी अल्लाह ताला इस ज़मीन का निज़ाम चला रहे हैं, और अगर वो टल जाए तो फिर अल्लाह के सिवा उनको कोई थाम भी नहीं सकता, और वो हलीम और गफूर है। अल्लाह ताला बहुत गलतियों को माफ़ करते हैं, बड़ा हिल्म है उनके अंदर। अगर वो हलीम ना होते, गफूर ना होते, माफ़ ना करते, तो कब की जी देखिए, जिसके घर के अंदर रहते हुए उनका खाते हुए जब कोई इधर मेहमान भी आ जाए, बदतमीज़ी करे या अब उनकी चीज़ों का मालिक बन बैठे, या ये करे कि उनका शुक्रिया तक अदा ना करे, और यहाँ तो हम सारी ज़िंदगी इस प्लैनेट पे गुज़ार करके जाते हैं इंसान। अगर अल्लाह की जगह किसी और को माबूद बनाते, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाज़ा अल्लाह ताला जब चाहते तो ऐसे लोगों को एक दिन भी ना जीने देते, एक दिन पानी ना देते, एक कतरा भी उनको कोई और चीज़ ना देते, लेकिन अल्लाह सब कुछ देते हैं, माफ़ भी करते हैं, और वक़्त का इंतज़ार करते हैं कि कब तक वो इंसान उनकी तरफ वापस आ जाए, क्योंकि इंसान किसकी मखलूक है? अल्लाह की। अल्लाह ने पैदा किया है उनको, और इन कुफ़ार ने बड़ी ज़ोरदार कसम खाई थी कि अगर इनके पास कोई डराने वाला आए, तो वो हर एक उम्मत से ज़्यादा हिदायत कबूल करने वाले होंगे। यानी कि ये कुफ़ार ने भी किसी टाइम पे जो है तमन्ना की थी कि उनके पास नबी होते, क्योंकि जो यहूद थे वो उनके जो उनका काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेड में थे, तिजारत में थे, और उनके जो कहना चाहिए कबाइल जो से थे वो मदीना में आकर के आबाद हुए हुए थे, मक्का में, और हर जगह के ऊपर वो कुफ़ार मक्का के साथ भी मिलते रहते थे, और अपने अंबिया और इस तरह की ज़िक्र करते रहते थे कि उनके पास इस तरह से किताब है, दीन है। तो कुछ कुफ़ार के ऊपर वो जो जिस तरह से बात करते थे कि उनके पास एक नबी आने वाला है इस इलाके में, और तब वो उनको वो ज़ोर गलबा हासिल होगा, और इस तरह से जो अल्लाह की रहमतें होती हैं। तो उनको सुन-सुन के कुफ़ार भी जो से थे उस वक़्त ये सोचते थे कि उनके पास भी कोई नबी आता, उनके पास भी ऐसी चीज़ होती है, ऐसी बताने के लिए बातें होती। तो अब ये है कि अब आ गए हैं नबी, तो अब ये क्या किया जा रहा है, और वो इन्हीं की कौम में से आ गए हैं। तो हर एक उम्मत से ज़्यादा हिदायत कबूल करने वाले होते, तो फिर जब इनमें डराने वाला आप हो जाता, तो बस उनकी नफ़रत में इज़ाफ़ा हो गया। तो दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने की वजह से, ये है वो वजह जिसकी वजह से कोई ईमान नहीं लाता, ये है वही वजह कि जिसकी वजह से
जैसे ये मनी मैटर में जब किसी की जो बैलेंस शीट होती है, जितना भी काम उसका हो रहा है, वो मुनाफ़ा प्रॉफ़िट की तरफ जौन-सा है, वो बिल्कुल तबाही के दहाने की तरफ ही उनका काम जा रहा हो, तो ये बिल्कुल वो हो गया। आप कह दीजिए कि तुम अपने शरीकों का हाल तो बतलाओ कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो। मुझे ये बतलाओ कि उन्होंने ज़मीन में कौन-सा जुज़ बना दिया, ऐसी कौन-सी चीज़ बना दी है जिसको आसमानों में कुछ तो उनका हिस्सा हो। हमने कोई इनको किताब दी है? यानी अल्लाह ताला सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि जिनको कि इंसान अल्लाह के अलावा पुकारता है या उनकी तरफ जाता है, तो क्या उनका कोई शेयर है? क्या वो शेयर होल्डर है इस पूरी कायनात में किसी भी जगह के ऊपर? बता दें। अल्लाह के साथ तो कोई भी शेयर नहीं करता, हम खुद नहीं करते। हमारा कोई अपना इंसानों का हिस्सा नहीं है। जो आज तक चले गए बड़े-बड़े बिलियनियर्स हुए या आज के दौर में तो बिलियनियर्स होते हैं, ठीक है? और पहले ज़मानों में बादशाह, शहंशाह इस टाइप की चीज़ें होती थी, ठीक है? तो कोई भी नहीं है। तो क्या है कि अल्लाह ताला ने क्या हमने इनको कोई किताब दी है कि नहीं जो अल्लाह ताला की बातों का इनकार कर रहे हैं? क्या उनको कोई किताब मिली है? ये कि उसकी दलील पर ये कायम हो के उनकी लॉजिक उसके मुताबिक बना रहे हैं? बल्कि ये ज़ालिम एक-दूसरे से निरे धोखे की बातों का वादा करते आ रहे हैं और पीछे से बड़ा इनके साथ जो इनका बड़ा कौन है? शैतान, जो इनकी इस बातों की तरफ लगा रहा है। पूरा किसी कल्ट का, किसी इज़्म का, किसी ट्रेंड का, किसी मज़हब को जो बनाया जाता है अल्लाह के दीन के खिलाफ, आज नहीं हमेशा से जो ऐसा कुछ होता है ग्रो, उनके पास एक पूरी डॉक्ट्राइन होती है कि ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है। वो सारी बातें क्या होती हैं? कोई रवायतें होती हैं जी, रसूम और रिवाज होता है, ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने से ये हो जाएगा, ये शगुन हो जाएगा, ये यहाँ से ये चीज़ मिल आएगी। ये चीज़ें नहीं है। कोई बनी-बनाई, सुनी-सुनाई बातें, ये नहीं होती। तो ये है निरे धोखे की बातों का वादा करते हैं और उनके पीछे इनका बड़ा शैतान होता है जिनको ये सिखाता है। यकीनी बात है कि अल्लाह आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है कि वो टल ना जाए, यानी अल्लाह ताला इस ज़मीन का निज़ाम चला रहे हैं और अगर वो टल जाए तो फिर अल्लाह के सिवा उनको कोई थाम भी नहीं सकता और वो हलीम और गफूर है। अल्लाह ताला बहुत गलतियों को माफ़ करते हैं, बड़ा हिल्म है उनके अंदर। अगर वो हलीम ना होते, गफूर ना होते, माफ़ ना करते तो कब की जी देखिए जिसके घर के अंदर रहते हुए उनका खाते हुए जब कोई अगर मेहमान भी आ जाए, बदतमीज़ी करे या उनकी चीज़ों का मालिक बन बैठे या ये करे कि उनका शुक्रिया तक अदा ना करे और यहाँ तो हम सारी ज़िंदगी इस प्लेनेट पे गुज़ार करके जाते हैं इंसान। अगर अल्लाह की जगह किसी और को माबूद बनाते, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाज़ा अल्लाह ताला जब चाहते तो ऐसे लोगों को एक दिन भी ना जीने देते, एक दिन पानी ना देते, एक कतरा भी उनको कोई और चीज़ ना देते। लेकिन अल्लाह सब कुछ देते हैं, माफ़ भी करते हैं और वक़्त का इंतज़ार करते हैं कि कब तक वो इंसान उनकी तरफ वापस आ जाए। क्योंकि इंसान किसकी मखलूक है? अल्लाह की। अल्लाह ने पैदा किया है उनको और इन कुफ़ार ने बड़ी ज़ोरदार कसम खाई थी कि अगर इनके पास कोई डराने वाला आए तो वो हर एक उम्मत से ज़्यादा हिदायत कबूल करने वाले होंगे। यानी कि ये कुफ़ार ने भी किसी टाइम पे जो है तमन्ना की थी कि उनके पास नबी होते क्योंकि यहूद थे वो उनके जो उनका काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेड में थे, तिजारत में थे और उनके जो कहना चाहिए कबाइल जो से थे वो मदीना में आकर के आबाद हुए हुए थे मक्का में और हर जगह के ऊपर वो कुफ़ार मक्का के साथ भी मिलते रहते थे और अपने अंबिया और इस तरह की ज़िक्र करते रहते थे कि उनके पास इस तरह से किताब है, दीन है। तो कुछ कुफ़ार के ऊपर वो जो जिस तरह से बात करते थे कि उनके पास एक नबी आने वाला है इस इलाके में और तब वो उनको वो ज़ोर गलबा हासिल होगा और इस तरह से जो अल्लाह की रहमतें होती हैं। तो उनको सुन के कुफ़ार भी जो से थे उस वक़्त ये सोचते थे कि उनके पास भी कोई नबी आता, उनके पास भी ऐसी चीज़ होती, ऐसी बताने के लिए बातें होती। तो अब ये है कि अब आ गए हैं नबी, तो अब ये क्या किया जा रहा है और वो इन्हीं की कौम में से आ गए हैं। तो हर एक उम्मत से ज़्यादा हिदायत कबूल करने वाले होते, तो फिर जब इनमें डराने वाला आप हो जाता तो बस उनकी नफ़रत में इज़ाफ़ा हो गया। तो दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने की वजह से ये है वो वजह जिसकी वजह से कोई ईमान नहीं लाता। ये है वही वजह कि जिसकी वजह से आज के दौर में भी लोग अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करने से रह जाते अपने आप को बड़ा समझने की वजह से। क्या है कोई इंसान अगर किसी को सलाहियत मिल गई, खूबसूरती मिल गई, कोई चीज़ मिल गई, कोई दौलत मिल गई, तो क्या इंसान के अंदर कोई बहुत तरक्की हो गई है? वो तो इंसान ही रहेगा ना, उसको ये सलाहियत किसने दी? अल्लाह ने दी है, ठीक है? तो इतना गुरूर नहीं जो है वो अपने आप को समझना नहीं चाहिए। इतना सेल्फ लव में बढ़ नहीं जाना चाहिए कि इंसान अपने अलावा जो है वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दे कि उसके अंदर कसरे नफ्सी ना हो और अपने आप को बहुत बड़ा समझे और अल्लाह के दीन पे ना चले और उनकी बुरी तदबीरों की वजह से। रीज़न नंबर 2 अल्लाह ने बयान की। बुरी तदबीरें यानी वो बैठ-बैठ के जो बुरी बातें सोचते और बनाते थे यानी उन और फिर क्या है बुरी तदबीरों का वबाल उन तदबीर वालों पे ही पड़ता है। तो बात है कि जिस किस्म की प्लानिंग वो करते थे, नेगेटिव सोचें हो गई, अंदर गरूर और तकब्बुर है, हसद है और अपने आप को बड़ा बनाने की चीज़ है। तो देखिए यही चीज़ तो फ़िरौन के अंदर थी, ठीक है? फ़िरौन ने अपने आप को बड़ा समझा और उसने अल्लाह का हुक्म नहीं मानने के लिए कहा। तो बार-बार वो यही बात नहीं करता था मूसा अलैहिस्सलाम से कि देखो ये लोग आ गए हैं, तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालने के लिए चाहते हैं, हुकूमत ये ले लें। यानी वो हुकूमत करता था तो बड़ा बन के बैठा हुआ था तो उसके दिमाग में यही था कि हुकूमत के लिए ये आए हैं। तो जो कोई कहीं पे भी आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों का क्लैश तो उनको जो बात उनको समझ आ चुकी होती है ना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वो उस पे अड़ जाते हैं और वो उसी बात को प्रोपेगेट करते रहते हैं। जबकि उनके मुकाबले में जो कोई भी होता है, तो वो इस बात को किसी और तरीके से चाहे कितनी अच्छी तरीके से बयान कर ले, वो इस बात को नहीं समझेंगे। क्योंकि जहाँ पे ये खामी हो ना ये तकब्बुर की और हसद की और ख़ास तौर पे अपने आप को बड़ा समझने की, तो उसकी वजह से ना बड़े ही सोच और समझ में और फैसलों में ना खराबी हो जाती है और बुरी तदबीर का वबाल तो उन तदबीर वालों पे ही पड़ता है। सो क्या ये इसी दस्तूर के मुंतज़िर हैं जो अगले लोगों के साथ होता रहा? तो सो आप अल्लाह के दस्तूर को कभी बदलता हुआ ना पाएँगे और आप अल्लाह के दस्तूर को कभी मुंतकिल होता हुआ ना पाएँगे। क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं कि जिसमें देखते-भालते कि जो लोग इनसे पहले होकर गुज़रे हैं, उनका अंजाम क्या हुआ? और जो लोग से पहले होकर गुज़रे हैं, उनका अंजाम क्या हुआ? हालाँकि वो लोग क़ुव्वत में इनसे बड़े हुए थे। अल्लाह ऐसा नहीं कि कोई चीज़ इसको हरा दे, ना आसमानों में, ना ज़मीन में। वो बड़े इल्म वाला, बड़ी कुदरत वाला है और अगर अल्लाह इन लोगों को इनके अमाल के सबब पकड़ने लगता, तो रूए ज़मीन पर एक जानदार को ना छोड़ता, लेकिन अल्लाह को एक मियाद मुअय्यन तक मोहलत दे रहा है। सो जब इन लोगों को वो मियाद आ पहुँचेगी, वो वक़्त आ जाएगा, अल्लाह अपने बंदों को आप देख लेगा।
अल्लाह ने कुछ लोगों को उनके अमाल के ऊपर छोड़ दिया है, और जो इतना समझाने के बाद भी जो अगर नहीं समझते, तो फिर अल्लाह ताला उनको खुद जो है वो देखेंगे, खुद उनके साथ मामला करेंगे। तो लिहाजा जिसका जो बदला बनता है वो अल्लाह ताला खुद देंगे। यही चीज़ है जो और यही चीज़ है हम सूरह अल-फातिहा में कहते हैं कि मालिक यौमिद्दीन कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। तो यहाँ पे हमारी सूरत जोन-सी है, फातिर जोन-सी है वो मुकम्मल होती है, और आगे सूरह यासीन जोन-सी है वो शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंजीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो सूरह यासीन के शुरू में भी हरूफ़ मुक़त्तआत है यासीन, और इसको नाम के तौर भी वैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेहतर यही है चूँकि इसका मतलब नहीं पता, तो लिहाजा जो है इनको जो है इस तरह से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अलबत्ता ये है कि बाज़ ने इसके मानी इस तरह से लिए हैं कि इसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को कहा गया, और बाद में इसे अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से बताया है। लेकिन देखिए इसकी कोई दलील नहीं है। तमाम के तमाम जितने भी हरूफ़ मुक़त्तआत हैं, उनका मतलब इंसानों को नहीं बताया गया। अल्लाह ताला ने इसको एक तरह से मख़फ़ी रखा। तो जिसका मतलब नहीं पता होता, उसका इस तरह से नाम बना लेने से जो है उसको ग्रेस करना चाहिए, क्योंकि उसके असरात जोन से है ना वो उस तरह से नहीं मालूम होते। अलबत्ता सूरह यासीन की जो फ़ज़ाइल हैं उसमें बहुत सी रवायतें मशहूर हैं। वो ये कि ये कुरान पाक का दिल है। इसे करीबुल मर्ग जो है यानी कि जो जिन लोगों के ऊपर मालूम हो जाता है कि इनके लिए जो है इनकी वफ़ात नज़दीक है, वहाँ पे इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन कोई सनद के लिहाज से इसकी कोई रवायत और दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती, कोई ऐसी हदीस उस तरह से, बल्कि जो अहादीस हैं तो जो जिनके बारे में बयान किए जाते हैं वो मौज़ू हैं यानी ज़ईफ़ हैं। तो क़ल्ब कुरान वाली रवायत को शेख अलबानी ने मौज़ू करार दिया है। और ये चीज़ जोन सी है ये कौन सी किताब में है? ज़ईफ़ा जो है वो उस किताब के अंदर इसकी हदीस 169 है, 169 है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ये जो सूरत है इसका जिस भी तरीके से बहरहाल इसके फ़ज़ाइल हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि कुरान पाक का जो हिस्सा है, इसके अलावा ये है कि इसको तिलावत भी किया जाता है सुबह और के मतलब अज़कार में भी। और अलबत्ता ये है कि इसके जो अंदर तमाम जो मतालिब और जो मौज़ूआत आए हैं, उसकी वजह से भी इसका एक अपना ही दर्जा है। इसका हम तर्जुमा देखते हैं। यासीन कसम है कुरान बाहिकमत की कि बेशक आप कमरों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अल्लाह ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से नाज़िल किया गया है, ताकि आप इससे लोगों को डराएँ जिनके बाप दादे नहीं डराए गए थे, यानी कि जैसे कुफ़ार मक्का भी थे, और सो इस वजह से ये गाफिल हैं। इनमें से अक्सर लोगों पर ये बात साबित हो चुकी है कि सो ये लोग ईमान नहीं लाएँगे। हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिया। तोक पहले भी ये चीज़ डिस्क्राइब हुई थी कि ऐसे होता है कि जैसे लोहे का एक रिंग होता है जिसके साथ चेन वगैरह अगर लटकी नहीं हो, या कोई ऐसा जैसे कॉलर सा पहना दिया जाता है। और देखिए कॉलर एक इंसान की गर्दन नाजुक होती है, इसी लिहाज से अगर ये मुसलसल किसी को कॉलर पहना दिया जाए, वो भी लोहे का, या इस तरह जैसे कि मुजरिमों को पहनाया जाता था, तो कितना उसका बोझ होता है। वो बोझ जो होता है वो उसकी वजह से इंसान हरकत नहीं कर पाता, उस बोझ की वजह से इंसान एक ही डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में उसको चेन से बांधा गया होता है। तो बात ये है कि इनमें से अक्सर लोगों पे बात ये साबित हो चुकी है कि ये लोग ईमान ना लाएंगे, और हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, फिर वो थोड़ियों तक है। अब ये जो कॉलर है वो इस किस्म का है कि गर्दन से लेकर चिन को उसने जकड़ लिया है, और वो इनके सर जिससे उनके सर ऊपर को उलट गए हैं। यानी इस तरह है, आप इमेजिन करिए कि जिसकी चिन तक के थोड़ी तक जो सा है वो कॉलर आया हुआ हो, अगर इंसान की चिन को ऊपर करके वो कॉलर इस तरह से पहनाया जाए, तो डेफिनेट सी बात है इंसान की जो चेहरे का डायरेक्शन होता है वो सामने को नॉर्मल हालत में देखता है। लेकिन जब ये कॉलर इस तरह का पहना दिया जाए तो उसका डायरेक्शन कि उसका चेहरा मुड़ जाता है पीछे की तरफ, वो इस तरह की सपोर्ट हो या इस तरह का वो कॉलर पहनाया गया और वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। यानी इस बात का मतलब ये है कि जो सीधी रास्ते की बात है, सामने की बात है, जो बात समझ आ जाने की बात है, वो किसी को समझ नहीं आ रही, इनको दिखाई नहीं दे रही, इनके डायरेक्शन ही चेंज हुए हुए हैं, और ये डायरेक्शन में किधर देख रहे हैं? बिल्कुल उसके उल्ट। तो ये बात अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि ये सर होता है ना, सर में ही सारे वो रिसेप्टर्स वगैरह पाए जाते हैं, कान भी वहीं पे लगा हुआ है चेहरे के साथ, और ब्रेन में वो प्रोसेस होती है आवाज़, आंखें भी मुंह के ऊपर लगी हुई होती हैं, ज़बान भी जो है वो मुंह के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो सी है वो चेहरे और सर के साथ ही तो मौजूद है। तो क्या है कि वो सारे रिसेप्टर्स, वो सारी चीज़ें जिससे कि देख करके इन्होंने कोई ईमान को हासिल करना था, कानों से सुनना था वही को, आंखों से देखना था हदायत की बातों को, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद है और जो आज भी हो, तो वो अगर नहीं समझते तो फिर उनकी कंडीशन ऐसी समझ लें कि उनके साथ ये वाला मामला हुआ है, उनको उनको इस तरह का कॉलर पहनाया गया हुआ है। तो आप इनको डराएं या ना डराएं, दोनों बराबर हैं। यानी कि ये इनकी जो फिजिकली भी जो सलाहियत थी ना, वो अब इस काबिल नहीं रही कि इस चीज़ को समझ लें। तो ये एक ही बात होगी, आप इनको डराएंगे, बात पहुँचाएंगे, बातें बयान करेंगे, तो इसको नहीं समझ सकते, ये ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह माफ़ करे ऐसी कंडीशन से जब किसी इंसान पे आ जाए, फिर तो बस आप ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले, रहमान से बिन देखे डरे। ये गैब का हिस्सा है ना हमारे ईमान का। अल्लाह ताला ने नज़र नहीं आना इस दुनिया में, ठीक है? तो जिस दुनिया में जो है उनकी किसी भी किस्म की शक्ल और शबीह और चीज़ उसको बनाने को मना किया गया है, तो उनकी नसीहत पे बिन देखे चलना है। और ये लेकिन उनकी जो मज़ाहिर कुदरत है, इर्द-गिर्द निशानियाँ तो हमें नज़र आ रही हैं। सो आप इसको मग़फ़िरत और बावकार अजर की खुशखबरियाँ सुना दीजिए। तो यानी कि जो लोग बिन देखे चलें, अल्लाह के डर से, अल्लाह की मोहब्बत में इस चीज़ के ऊपर चले, अल्लाह के दीन के ऊपर, तो उनके लिए खुशखबरियाँ और बावकार अजर। ये अल्लाह ताला अगर चाहते तो खाली अजर भी कह सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला कितना इज़्ज़त देते हैं ईमान वालों को, और जो ईमान लाता है उसको किस्सा ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम तो सिर्फ़ जब हमारे कोई दोस्त या कोई ऐसे कहना चाहिए
कोई बात को मान ले, सहेली हो या बच्चे हों या जो तो हम कहते हैं कि इन्होंने हमारी बात मान ली, इनकी कदर हमारी ज़िंदगी में बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा है क्योंकि ये हमारी बात को या हमारे साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या बात मान के चलते हैं। तो बात है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ बात मान के चलने वाले को सिर्फ़ इतना कहा है कि वो फ़ायदा देंगे, तोहफ़ा देंगे, अजर देंगे, सिला देंगे, लेकिन बावक़ार कहा है। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए कि बावक़ार यानी इज़्ज़त में, मर्तबे में इज़ाफ़ा कर दिया है। तो आगे इसका तर्जुमा देखते हैं, बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, हम लिखते जाते हैं, वो अमाल भी जिनको ये लोग आगे भेजते हैं। यानी जो इंसान अमल करता जाता है, हवा में गायब नहीं हो जाता, जो कुछ बोलता है हवा में गायब नहीं हो जाता, अल्लाह के यहाँ महफ़ूज़ हो रहा है। उनके वो अमाल भी जिनको ये पीछे छोड़े जाते हैं, यानी कि जो पीछे छोड़े जाते हैं, माज़ी में जो चीज़ हो चुकी है, हमने हर चीज़ को एक वाज़िया किताब में ज़ब्त कर रखा है। हर एक इंसान का अपना भी बुकलेट है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें, उसकी सारी डीलिंग्स वगैरह सब कुछ जो कहा जा रहा है, सब कुछ सारा ज़िंदगी का मामला लिखा जा रहा है डे 1 से। इसके अलावा तमाम दुनिया की चीज़ें जो पैदा की जानी थी वो उम्मुल किताब के अंदर, किताब मुबीन के अंदर अल्लाह ताला ने लिखी हुई है और वो किताब कहाँ है? अल्लाह ताला के पास, अल्लाह के फ़र्श जो अर्श है ना, वहाँ पे वो मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बयान किया कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान का जब फैसला करेंगे तो उसके सामने तभी तो वो किताब सामने ला दी जाएगी जिसके अंदर इंसानों की जो वाक़यात हैं, उसकी अमाल वगैरह सब चीज़ें दर्ज होती हैं। तो ये जो इसके अंदर इसके अलावा एक और बात जो इस आयत में आई है, एक जो देखिए इसमें आयत नंबर 12 के अंदर जिसका तर्जुमा पढ़ा गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। ये जो आसारहुम जो से हैं निशानात, यानी कि इंसान अपने अमाल को जिनको पीछे छोड़ जाता है, यानी उसके निशानात वगैरह, उसके बारे में बात करते हैं। जो निशानात है ना, इसके ऊपर जो अगर चीज़ देखा जाए तो इंसान जब भी किसी जगह पे जाता है तो अब उस जगह पे अपना इंप्रेशन डेफिनेटली छोड़ता है। देखिए साइंटिफिकली एक बात जो भी प्रूव हुई है और जिस चीज़ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो सी है कि खासतौर पे रात को जाते हुए अपने बिस्तरों को झाड़ करके उसके ऊपर सोने का फरमाया गया, तो जो पता चला गया और माइक्रोस्कोप से अगर बिस्तरों को देखा जाए तो इंसान की बॉडी से जो उसके डेड सेल्स होते हैं, ऐसे बारीक ज़र्रात गिरते रहते हैं। और इसके अलावा चूँकि हम भी समझ लें कि एक हम इंसान के अंदर जो मतलब एक मैग्नेटिक फ़ोर्स जो एक इंसान के अंदर भी पाई जाती है, तो हम जहाँ-जहाँ से गुज़रते हैं उस जगह के ऊपर हमारी उस चीज़ की असरात भी जो से है वो उसके भी रहते हैं। तो हम वो जगह पे इंप्रेशन भी अपना छोड़ के जाते हैं। तो ये जैसे कि डेड सेल्स का किसी जगह पे गिरना है, उस जगह के ऊपर कोई इंसान जैसे कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अब फिंगरप्रिंट्स की बात को भी हम समझ गए हैं। इंसान की पैरों के भी निशान होते हैं, हाथों के भी निशान होते हैं। तो इसके अलावा बॉडी के डेड सेल्स भी हैं जो गिर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो-सी हैं, इससे एविडेंस ये आसारों हमसे पता चलता है इंसान जहाँ-जहाँ से कहीं से गुज़रता है, कल को वो जगह, वो ज़मीन, वो गवाही किस तरह से देगी, क्योंकि वहाँ पे इंसान अपना डीएनए का पार्ट छोड़ के जा रहा है, अपने आसार छोड़ के जा रहा है, अपने इंप्रेशन छोड़ के जा रहा है। जैसे आज की दुनिया में अब इस टेक्नोलॉजी में इंसान फिंगरप्रिंट से लेकर के इन चीज़ों से लेकर के डीएनए से लेकर के किसी भी चीज़ का पता चला लेते हैं। तो इसी तरीके से क्या अल्लाह ताला के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? अल्लाह के पास तो पहले से है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है? आज अगर किसी को ये पता चली है, तो अल्लाह ताला के पास तो इससे भी बड़ी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जिस-जिस जगह से इंसान गुज़रा हो, वो ज़मीन उस जगह की गवाही पेश करेगी। तो क्या है कि इस बात को, इस लफ़्ज़ को यहाँ पे इस आयत को आसारूम से के साथ-साथ पूरी आयत को हमें ये समझना है, हम जो भी काम करेंगे, बुरा हो या अच्छा, वो हमारी एविडेंस उस जगह पे वो गवाही, वो जगह, वो ज़मीन भी देगी, वो इर्द-गिर्द की तमाम अशिया जिनको हम बेजान समझते हैं, वो भी देंगे, हमारा अपना जिस्म भी देगा। तो फिर अब अगला सवाल ये है, तो हमें क्या हो कि हम अच्छा काम ना करें, कि उसकी एविडेंस बने, ठीक है? हमें वो बुरा काम करना है कि हम उसकी बुराई की एविडेंस तैयार करें। तो अभी हमारे अपने पास ये चॉइस है कि हम जो है कोशिश करें कि हम अच्छा काम करें ताकि हमारे जो आसार हैं, जो वो अच्छी जगहों पे वो महफूज़ हो। इसी तरीके से जब जैसे भी इंसान कोई नेकी या बदी का सफ़र करता है तो उसके जो कदमों के निशानात होते हैं, जितना वो कदम उठाता है, उसकी वो चीज़ भी काउंट होती है कि उसने कितना नेकी की तरफ काम किया, कितना, ये सारी असेसमेंट भी है। ये सारी एनालिटिक्स भी जो सी है, ये सारी चीज़ें अल्लाह के यहाँ पे भी महफूज़ होती है। तो ये बात जो सी है अहद रसालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी करीब कुछ जगह खाली थी, तो बनु सलमा ने उधर मुंतकिल होने का इरादा किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई, तो आपने उन्हें मस्जिद के करीब मुंतकिल होने से रोक दिया और फरमाया कि दियारुकुम तुक्तबू आसारुकुम, 2 मरतबा फरमाया था कि तुम्हारे घर अगरचा दूर हैं, लेकिन वहीं रहो, जितने कदम तुम चल कर आते हो वो लिखे जाते हैं। तो वो आसारुकुम जोन सा है, वो यहाँ पे इस मानों में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? तो सही मुस्लिम की हदीस 665 है और इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि दोनों मफ़हूम जोन से है कि इंसान का जो, जैसे कि मैं पहले भी ज़िक्र किया कि निशानात, कदम या जो भी है आसार, वहाँ पे वो चीज़ है ना, और एक आसारुहुम के जो कितना फ़ासला तय करके आना, ये सारी बातें भी, और ये जो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो लिहाजा इंसान जो है इस चीज़ को बस समझे कि अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़, हर काम, हर नेकी, हर तरह की चीज़, नेक हो बद हो, सब चीज़ें जो है ना वो लिखी जा रही हैं। तो इनके लिए बस्ती वालों की को बतौर मिसाल बयान कीजिए, जब उसकी बस्ती पे कई रसूल आए, जब हमने उनके पास 2 को रसूल बना करके भेजा, सवा उन लोगों के जिन्होंने अव्वल को यानी कि दोनों को झुठला दिया, फिर हमने तीसरे से तायद की। पता चलता है एक बस्ती में पहले 2 रसूल गए थे, फिर उसके बाद तीसरे गए थे। तो पहले 2 को उन्होंने झुठला दिया था। सो इन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। उन्होंने कौम को समझाने की कोशिश की और ये जो सिलसिला है, आले मक्का के सामने बार-बार रसूलों की बातें जो पेश की जा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि मतलब जो अहले मक्का हैं, ये कोई अनोखे लोग नहीं है कि जिनके पास जो है वो रसूल आए। कुरैश मक्का को ये बताया जा रहा था इस वही के ज़रिए कि पहले भी रिसालत और नबूवत का सिलसिला कदीम दौर से चला आ रहा है और पहले भी अगर लोगों ने अगर उसको बदतमीज़ी की थी, झुठलाया था, तकज़ीब की थी, तो फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ, तो इसलिए बार-बार इन चीज़ों का ज़िक्र किया जाता है। तो यहाँ तो एक रसूल आया और वहाँ पे 3 आए थे और ये जगह कौन-सी थी? बाज़ लोगों ने कहा कि ये कोई तुर्की के पास एक इलाका था, अंताकिया, जैसे उसमें 3 रसूल आए थे और उनकी कौम उन पर ईमान नहीं लाई थी और उन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई थी, उन्होंने सब्र किया था। तो इसी तरीके से जो वहाँ पे हुआ था, तो यही चीज़ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बयान
बयान की जा रही है। तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी उनकी कौम जो थी बहुत बुरा जो उस वक़्त सलूक कर रही थी, तो उनको इस लिहाज़ से तसल्ली दी जा रही थी कि ऐसे भी पहला हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि तुम तो हमारी तरह के मामूली इंसान हो और रहमान ने कोई चीज़ नाज़िल नहीं की, तुम निरा झूठ बोलते हो। उन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मा तो सिर्फ़ वाज़िह तौर पर पहुँचा देना है। उन्होंने कहा हम तो तुमको मनहूस समझते हैं। ये कहा जाता है कि पहली बार था कि जब किसी के ऊपर किसी कौम ने अपने नबियों को इस तरीके से जो है मनहूसियत की बात की थी। हालाँकि वो इस तरह की कोई बात उनसे इस तरह से बयान नहीं कर रहे थे। बहरहाल उसका उन्होंने इस तरह से जवाब दिया अगर तुम बाज़ ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। यानी संगसार करने की कोशिश की उन्होंने अपने नबियों को, तो रसूलों को, तो हम तो तुम्हारे हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुँचेगी। उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है। यानी हर इंसान का जो अच्छा बुरा नेक काम होता है उसका असर तो उसी के ऊपर होता है, ना कि हमारे साथ है। यानी तुम लोग हम लोगों का जो बुराई की कोई काम होगा उसका तुम्हें तो नहीं ज़िम्मा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ लगी क्या इस नहूसत को समझते हो कि तुमको नसीहत की जाएगी, बल्कि तुम तो हद से गुज़रने वाले लोग हो। यानी जो अल्लाह ताला ने हदूद मुकर्रर की हुई है एक इंसान की, तुम तो उस हद से निकल रहे हो। और एक शख्स उस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा ए मेरी कौम के लोगों, इन रसूलों की राह पे चलो। पता चलता है कि पूरी कौम एक तरफ थी ना मानने वाली, और जो शहर से बाहर एक इंसान था, ये जो कोई भी था वो मुसलमान हुआ था, वो शहर के किनारे पे रहता था, और जब उसको पता चला कौम रसूलों के साथ ये कर रही है, तो वहाँ से वो दौड़ते हुए चले आए। ये क्या उन्होंने बात वहाँ पे बयान की कि जब मौका ऐसा हो कि जान का भी खदशा हो, लेकिन गवाही देनी ज़रूरी हो, तो हक़ बात की गवाही उस शख्स ने दी थी जिनका नाम अल्लाह ने कुरान पाक में नहीं बताया। अब चाहे बाज़ तफ़सीरों में उनका नाम हबीब नज्जार लिखा हो, चाहे उनके बारे में लोग कहते हों कि जी किसी वजह से वो बाहर रहते थे, लकड़ी का काम करते थे, क्या करते थे, कुरान ने इसका कुछ ज़िक्र नहीं किया। अल्लाह ने जो बात पसंद कर ली, अल्लाह ने जो उनको चुन लिया, वो ये कि उन्होंने आकर के गवाही दी थी उन रसूलों की, और वहाँ पे अपनी कौम के साथ खड़े होके बड़े ही अच्छे अल्फाज़ में अपनी कौम को जो तबलीग की थी, रसूल कर चुके थे, लेकिन वहाँ पे जो उनकी कौम करने जा रही थी, वो उन्होंने वहाँ खड़े होके अपने रसूलों का दिफ़ा किया और अपने ईमान का इज़हार किया और अपनी कौम को समझाया भी, और बड़े अच्छे तरीके से, और कहा कि लोगों, ऐसे लोगों की राह पे चलो जो तुमसे कोई मुआवज़ा नहीं माँगते और वो राहे रास्त पे हैं। और ये बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बात की थी। इसका बाकी बयान आगे जारी होगा। यहाँ पे हमारा पारा जो-सा है 22वाँ पारा खत्म हो जाता है, हमारा जुज़ खत्म होता है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी भी हमने इसमें नेकी की बातें पढ़ी, अल्लाह ताला हमें उस नेकी के कामों के ऊपर जो है साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे, हमसे नेक काम ले लें, और ताकि क़यामत जो है आने वाले मुसलमानों के अंदर वो नेकियाँ जारी कर दें, और जिसमें हमारा घराना तमाम मुसलमान के घराने शामिल हो, और ख़ास तौर पे जो है मुस्लिम उम्मा का जो है शबाबुल मुस्लिमीन है वो भी, और जो बुराइयाँ इसमें अल्लाह ताला ने बयान फ़रमाई हैं, अल्लाह ताला उन बुराइयों से हमें बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, महफ़ूज़ रखें, और यहाँ तक कि शैतान जब रमज़ान के बाद भी आए तो ता क़यामत जो आने वाले मुसलमान हैं उनको भी महफ़ूज़ रखे और हमें भी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की जो है जायज़ ख़्वाहिशात को, और जो हमारी दुआएँ उनको कबूल करे, अपनी दुआ में एक-दूसरे को याद रखें, और जो हमारी उम्मत मुसलमा का हिस्सा जो भी किसी मुश्किल और तकलीफ में है, अल्लाह ताला उनकी वो मुश्किल और तकलीफ भी दूर करे, उनके ऊपर अच्छा दौर आए, और अल्लाह जो हक़ के ऊपर जमे हुए हैं उनको फ़तह नसीब करे, कामयाबी नसीब करे, और अमन का दौर आए, और अल्लाह ताला तमाम इंसानों तक हक़ बात को अच्छे तरीके से पहुँचा दें, और हमें तौफ़ीक दें कि हम अच्छे तरीके से इस पैगाम को पहुँचाएँ और तमाम इंसानों के दिल नेकियों की तरफ लगे। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा तमाम के मुसलमान को भी, और अमन की ये हालात की दुआएँ माँगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।